ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور پیارے بھائیوں، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کو انشاءاللہ آپ کو سن کے بڑا مزہ آئے گا۔ اور آج کا پروگرام ہماری تو یہ خواہش تھی کہ ہم نے جو تحقیق قبر یوز آصف ہے اس کو مزید آگے بڑھاتے، کچھ اور حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرتے، لیکن محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہمارا جو تھا لیکچر نمبر 5 پچھلا پروگرام، اس کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے مبارک بھائی، میری آواز اور تصویر ٹھیک آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا میرے بھائیوں، جیسا کہ خاکسار عرض کر رہا تھا، جو ہم نے 5واں جو پروگرام کیا تھا پچھلے اتوار کو، اس کے جواب میں جو شمس الدین صاحب اور ان کی ٹیم نے ایک پروگرام کیا کچھ 3.5 گھنٹے کا، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے پروگرام میں کچھ حوالہ جات پیش کیے آپ کے سامنے، کچھ نئے حوالہ جات تھے، کچھ ویڈیوز تھیں۔ اپنے زوم میں انہوں نے ان حوالہ جات اور ان ویڈیوز کا اثر کم کرنے کے لیے جو ہے وہ لمبی سٹریم کی کچھ 3.5 گھنٹے کی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جو 3.5 گھنٹے کی سٹریم تھی، آپ جا کے اس میں چیک کر لیں، جو اصل ہمارا موضوع ہے جس سے ہم نہ دائیں جائیں گے نہ بائیں جائیں گے انشاءاللہ، وہ ہے قبر یوز آصف کی تحقیق، قبر مسیح کی تحقیق۔ وہ 3.5 گھنٹے کا تقریباً کا پروگرام، 3.5 گھنٹے کا، اس میں سے آدھے سے زیادہ پروگرام وہ ادھر ادھر گئے ہیں، دوسرے موضوعات کو ڈسکس کیا ہے، اور جو حوالہ جات ہم نے دکھلائے تھے ان میں سے ایک حوالہ مثلاً یہ خاکسار نے جو دکھلایا تھا، میں آپ کو ابھی شیئر کر کے وہ دکھلا بھی دیتا ہوں۔ ایک حوالہ خاکسار نے دکھلایا اصول کافی کا، یہ والا حوالہ، ٹھیک ہے جی۔ اس حوالے کو تو ان لوگوں نے ٹچ ہی نہیں کیا، یعنی پورے پروگرام میں ڈسکس ہی نہیں کیا، اس قدر بخلاہٹوں کا شکار یہ لوگ ہیں۔ پھر خاکسار نے جو الفضل کے قادیان، اس کے حوالے سے جو ایک مضمون آپ کے سامنے پیش کیا، جو مبارک بھائی نے، ہمارے دونوں مبارک بھائیوں نے پڑھ کے سنایا تھا، جس الفضل میں اخبار اہل حدیث میں چھپنے والے ایک مضمون کا جو تھا، یہاں پر انہوں نے اسی کو دوبارہ یہاں پہ لکھا تھا۔ اس مضمون کے بارے میں بھی ان لوگوں کی بخلاہٹیں، ان لوگوں کی پریشانیاں، ان لوگوں کی اس مضمون سے متعلق عجیب و غریب کہانیاں، وہ ہم آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور کیوں پیش کریں گے؟ اس لیے کہ وہ ان کی بخلاہٹیں، ان کی پریشانیاں اور ان کے جھوٹ در جھوٹ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارے لیکچر 5 میں اللہ کے فضل سے جو ہم نے حوالہ جات، جو ہم نے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی، انہوں نے ان لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، میں اپنے بھائیوں کو یہ درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارا پروگرام عموماً اتوار کو ہوتا ہے، لیکن آج جو ہے وہ ہفتے والے دن ہمارا پروگرام ہوا ہے، اس لیے اگر آپ اپنے دوستوں کو بتا سکیں، خاکسار نے ویسے بتا تو دیا تھا، اگر آپ کسی کو آگے بتا سکیں کہ پروگرام شروع ہو گیا ہے تو ضرور آگے بتائیں، ورنہ لوگ بہرحال وہ بعد میں دیکھ لیں گے، وہ پروگرام ظاہر ہے یوٹیوب پہ ہونے کا یہ فائدہ تو ہے۔ بہرحال چلتے ہیں جی ان کے پروگرام کی طرف۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ جو پہلا حصہ ہے، اس میں ایک تو ہم جو ہے ان کی ویڈیو دکھائیں گے آپ کو، اس میں جو انہوں نے جھوٹ بولے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور انہوں نے یہ جو ہمارے جو اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ جھوٹ بولا
کہ جی یہ مضمون تو کبھی اخبار اہل حدیث کے اندر چھپ ہی نہیں سکتا ہے جی، اور اس بارے میں عجیب و غریب باتیں کی. ہم نہ صرف وہ آپ کو دکھلائیں گے بلکہ ہم آپ کو آج وہ اخبار اہل حدیث بھی دکھلائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور مزے کی بات یہ ہے پیارے بھائیوں کہ ہمارے اوپر اعتراض کرنے والے لوگوں کا اپنا یہ حال ہے کہ یہ اپنے وہ جو اس طرح کے اخبارات، اپنی کتابیں، ان کو چھپاتے ہیں عوام تاکہ عوام تک پہنچ نہ جائے. ٹھیک ہے. ہم الحمدللہ نہ صرف یہ کہ وہ حوالہ جات آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، بلکہ جماعت احمدیہ مسلمہ کی یہ ایک امتیازی شان ہے کہ ہمارا لٹریچر ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. جس نے جا کے دیکھنا ہے وہاں سے جا کے پڑھ لے. جی ہم تو اپنا لٹریچر عوام کو بتاتے ہیں، دکھلاتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں. یہ آپ لوگ ہیں جو ہمارا لٹریچر عوام سے چھپاتے ہیں پابندیاں لگا کے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کرتا، میں نے کہا یہ آپ کو ایک بات جو ہے وہ بتا دوں، ہمارے میں اور ان لوگوں میں بنیادی فرق. اچھا کیوں ہم بتاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ یقین کامل ہے کہ ہمارا لٹریچر سچائی پہ مبنی ہے، ہمارا لٹریچر حقیقت پہ مبنی ہے، ہمارا لٹریچر ہی وہ لٹریچر ہے جو دراصل اصل اسلام ہے. ہم نے اپلوڈ کر دیا ہوا ہے. ہم آپ لوگوں کی طرح تھوڑے ہیں کہ اپنے اس لٹریچر کو چھپاتے پھریں اور پھر ان میں سے کبھی کوئی صفحہ نکال دیں، کبھی کوئی کتاب نکال دیں. یہ انشاءاللہ آگے جب بات چلے گی تو ہم آپ کو بتائیں گے. جی مبارک بھائی، آپ نے کس بارے میں کوئی بات کرنی ہے یا خاک صاحب جو ہے وہ ویڈیو کو شروع کرے؟ نہیں آپ جاری رکھیں تسلسل، پھر انشاءاللہ تعالی آگے چل کے بات. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ پیارے بھائیو آج ہم نے ایک دفعہ پھر یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ان کو جو اصل موضوع ہے اس سے ادھر ادھر نہیں ہونے دینا. اب یہ دیکھیں ان لوگوں نے بھی اپنی یہ جو میں نے آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ ادھر ادھر گئے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اصل موضوع سے کسی طرح ہم ہٹ کے گپے شپے مارے ادھر ادھر کی. اس میں ایک ان کی گپ جو تھی وہ دیکھیں، میں ذرا آپ کو سناتا ہوں. آپ کو میں ایک تو آپ کو دکھاؤں کہ گپیں کس طرح کی چل رہی تھیں. اور ویسے یہ ایک بات ہے جی، جب یہ لوگ گپے مارتے ہیں نا، جھوٹ بولتے ہیں، بڑے ہی اعتماد سے بولتے ہیں. یہ ان کو داد دینی پڑے گی جی. یہ ذرا سنیں ان کی گپیں. ابھی آپ کے سامنے سکرین پہ آئے گا. ہاں جی بالکل. اور ایک گل ہے کہ مرزا طاہر احمد نے کیوں رکونی عزائن کی نوی ایڈیشن بنائی جب وہ لندن گیا، انہیں ساری کتاباں کیوں ساریاں وہ بھی ہم کوئی اور دن سمجھائیں گے. پر یہ ہے رکونی عزائن جی مرزا طاہر احمد نے بنائی. ہاں جی، وہ لٹریچر میں شاہ صاحب جو ان کا تھا بڑی انہوں نے ترمیم کی اور بڑی چیزیں جو ہیں ان کو بدل دیا تھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ پھر روحانی خزائن دے کے آئے. ابھی بھی تبدیلی جاری ہے، سب مسئلہ نہیں. جی میرے بھائیو ہیں جی، یہ تھی گپیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، یہ اس طرح کی گپیں لوگ مار رہے ہیں. دیکھیں یہ جو بشیر شاہ صاحب آئے ہیں جی، حضرت خلیفۃ مسیح رابع کیوں جی نئے روحانی خزائن لے کے آئے اور تاثر یہ دے رہے ہیں عوام کو کہ گویا جماعت احمدیہ مسلمہ کی کتابوں میں بڑی کوئی تبدیلیاں ہو گئی ہیں. کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ تبدیلیاں وہاں پر پیش کرتے کہ جی یہ تبدیلی ہو گئی ہے، یہ پچھلے ایڈیشن میں نہیں تھی، اب اگلے ایڈیشن میں آ گئی ہے، یا پچھلے ایڈیشن میں تھی اگلے ایڈیشن میں نکل گئی ہے. کوئی ایک بھی مثال وہاں پہ نہیں تھی ہے جی. ایک لے کے آئے یہ جو حضرت علامہ شمس الدین صاحب ہیں، وہ جی فلاں جو قرآن پاک کی آیت ہے وہ ابھی تک اسی طرح لکھی ہوئی ہے جس طرح کے پہلے ایڈیشن میں لکھی گئی تھی، غلط لکھی گئی ہے. تو جناب آپ کا تو دعویٰ تھا کہ ہم نے تبدیلیاں کر دی ہیں، ہم نے چیزیں اس میں سے نکال دی ہیں، ہم نے چیزیں ایڈ کر دی ہیں، اور مثال کیا لے کے آئے ہیں جی. یہ تو آپ لوگوں کی علمی مطلب حالتیں ہیں. انسان کیا کرے؟ آپ مثال کچھ اور دیتے ہیں، دعویٰ کچھ اور کرتے ہیں. دعویٰ کچھ اور ہے، دلیل کچھ اور ہے. پھر کہتے ہیں ہم محقق ہیں، پھر کہتے ہیں ہم بہت بڑے جناب عالم ہیں. آپ نے گپے ماری اور جو مثال بھی دی برہین احمدیہ کے صفحہ 601 کی، وہ مثال بھی آپ کی جو دعویٰ تھا اس کے خلاف کہ جی کہتے ہیں وہ پہلے جو تھی نا چھپی ہوئی وہی ابھی تک چھپ رہی ہے. سبحان اللہ جی، کیا بات ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ ہی آپ کی حالت پہ رحم کرے. اچھا بہرحال جی، ہم جس طرح خاکسار نے عرض کیا ہے، جو یوز آصف قبر یوز آصف سے متعلق جو باتیں ہیں ان کے اوپر جو ان کے کامنٹس ہیں ان میں سے وہ ہم کچھ لے کے آئے ہیں آپ کے سامنے.
اور जो बाकी इन्होंने गप्पे शप्पे मारी हैं वो चूंकि उनका कब्र यूज आसफ से ताल्लुक नहीं है और हम इधर उधर नहीं हटना चाहते, इसलिए हम उनको इग्नोर करेंगे। इससे पहले कि खाकसार मजीद इस वीडियो को आगे चलाए, मैं एक बात याद करवा दूं दोस्तों को कि हम अभी तक इस चैलेंज के ऊपर शमसुद्दीन साहब की तरफ से हवालों का इंतजार कर रहे हैं जी। बड़े बड़े इन्होंने बहाने मारे और आखिर पे अब ये बहाना कर रहे हैं कि जी तब ये हवाला देंगे जब ये हमारे पास आएंगे। शमसुद्दीन साहब, आपने हमारे पास आने के तो रास्ते खुद ही बंद कर दिए, बेशुमार हमने आपको मौके दिए, आप नहीं आए, लेकिन आपको अब क्या चीज मना कर रही है? सवाल है मेरा आपके ऊपर। सवाल ये है कि शमसुद्दीन साहब, आप कहते हैं कि मैं जी बड़े हवाले पेश करने वाला बंदा हूं, अब आपको कौन सी बात मना कर रही है कि ये जो हमारा आपका चैलेंज था, इसकी शिक नंबर 1 और 3 के ऊपर जो हवाला हम आपसे मांग रहे हैं, पिछले कोई 2 महीने हो गए हैं, वो आप अपने प्रोग्राम में पेश कर दें। हमारे पास तो अब से आप दौड़ गए हैं। आपका हमारे पास आने के दौड़ने से बहाने तराशना और अपने प्रोग्राम में पेश ना करना क्या बताता है आवाम को? यही बताता है कि आपके पास हवाला सिरे से मौजूद ही नहीं है। बहरहाल जी प्यारे भाइयों, चलते हैं उस वीडियो की तरफ और देखते हैं जी इन्होंने क्या क्या उस वीडियो में झूठ बोले हैं, क्या क्या उस वीडियो में इन्होंने ऐसी बातें की हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। बहरहाल जी, ये कहते हैं ना, शुरू में ही जो मैं इनको दिखाने लगा हूँ, शमसुद्दीन साहब की जरा बात सुने। जैसा कि आप जानते हैं, एक कादियानी हजरात यूज़े आसफ पर बस बेचारे दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, वो कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, मगर हवाला तो हम ही देंगे और जवाब भी हम ही इंशाल्लाह देंगे। जी जी, हवाला ये देंगे जी, जवाब ये देंगे। और इनको अभी तक ये जरूरत नहीं हुई कि वो जो हम हवाला इनसे मांग रहे हैं, अवाम जिस हवाले का इंतजार कर रही है, वो हवाला अवाम के सामने पेश करें। ये कोई और वो हवाला जा जिनका इन बातों से ताल्लुक भी नहीं है इनके चैलेंज से, वो पेश करके तो इस तरह का फिक्रा बोल देते हैं। बहरहाल जी सुने जरा आगे क्या कहते हैं। और मुझे आज ही एक बंदे से ये पता चला है, इंशाल्लाह वो ये गप्पे सुने प्यारे भाइयों, ये इस तरह की गप्पे पूरे प्रोग्राम में पेश करते रहे बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी हवाले के, और ये समझते हैं कि हम अवाम को बेवकूफ बना लेंगे। सुने जरा। मुझे जब हवाला देगा फिर इंशाल्लाह आपके सामने पेश करूंगा। जब हवाला देगा वो बंदा तो कहते हैं मैं आपके सामने पेश करूंगा। और इनको ये शर्म नहीं आई, ये हया नहीं आई कि इल्मी दुनिया में इस तरह की गप्पें थोड़ी चलती हैं कि जब हवाला आएगा, जब वो इनको देगा तो ये अवाम को दिखा देंगे। और ये जो भी पूरी आगे ये इतने वक्त अवाम का जाया करेंगे, ये सिर्फ जबानी जो है वो जबानी पुलाव है जी। सुने जरा। अब्दुल्ला कश्मीरी ने मिर्जा कादियानी को ये कहा ना कि मेरे खत में तो ईसा अलैहिस्सलाम का कोई जिक्र नहीं है, तुमने इसमें क्यों शामिल किया है? तो उसने कहा बात सुनो, हमें इस्लाम की खिदमत करनी है। इस बात से अगर ईसाइयों का जोर टूटता है तो मुझे बात करने दो। इससे जो कश्मीर वाली कब्र है, मैं इसको जब कहूंगा ईसा अलैहिस्सलाम की है तो सलीबी अकीदा पाश पाश हो जाएगा। अब ये देखे क्या मशवरा दे रहा है अपने मुरीद को। वो मुखलिस था, उसने आगे कहा कि आपने ये क्या किया है, तो आगे इसने उसको मुतमिन करने के लिए ये कह दिया कि ईसाई इस वक्त जो है वो बड़े जोरों शोर से इस्लाम पर हमला कर रहे हैं, तो जो भी हो हमें इसका हमला रोकना है किसी तरह। तो उसके लिए ये कब्र जो है ये बड़ी मुफीद है, मौजू है, तो हम इसको इसे लिख देते हैं ताकि हम कहेंगे कि हमने कसरत तस्लीम कर दी है, ईसाइयों का मुंह बंद हो जाएगा। तो मैंने उन साहब से कहा, मैंने कहा ये मुझे हवाला चाहिए किस किताब के अंदर है। उन्होंने कहा इंशाल्लाह मैं आपको ढूंढ के ये हवाला भेजूंगा। ये देखा, सुना है प्यारे भाइयों, हवाला भाई साहब के पास मौजूद ही नहीं है। उन जिस बंदे ने इनसे गप मारी है उन्होंने भी हवाला ढूंढना है। अब वो जब हवाला कभी ढूंढेगा वो बंदा, वो इनको देगा, ये पेश करेंगे, तो फिर ही हम देखेंगे किसका हवाला है, वो कितना रिलायबल है, हवाला है भी या कि नहीं है।
डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि जिसने इनको बताया है उसने भी पढ़ा नहीं है, बात बना के पेश कर दी है, उसके बाद उसने हवाला बना के देना है। बिल्कुल जी, वो कहते हैं ना छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, इधर तो सब उल्टा पुल्टा भी हो रहा है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह है जी। तो ये इनके जिस तरह के ये खुद गप्पस्तान रेडियो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, उसी तरह के गप्पी लोग इनके इर्द गिर्द बैठ के हुए हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये मुबारक भाई कितनी ढिठाई से और किस कदर एतमाद के साथ ये बंदे इस तरह की गप्पों के ऊपर कहानियां बना के अवाम को बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। और उसकी बुनियाद पर फिर इसका मतलब है कि उसकी झूठी तसल्ली की बुनियाद पर इन्होंने ये चैलेंज लिख दिया। हाँ जी बिल्कुल, देख लें जी, वो आगे पूरी स्टोरी अल्लाह अकबर। मतलब चैलेंज चले ये कहें जी मैं तो उसके बाद लिखा था, चलो चैलेंज की इन्होंने चूंकि बात नहीं की, हम चले उसको नहीं इसमें शामिल करते। लेकिन बात यह है कि आप अवाम को ये कह रहे हैं कि जी इस तरह होता था बगैर किसी हवाला के, उस बंदे ने भी अभी वो हवाला ढूंढना है, अब अवाम को वो कर रहे हैं। क्यों हुआ ये है मुबारक भाई, असल में कि पिछले प्रोग्राम में जो हमने अल्लाह के फजल से हवालाजात पेश किए हैं ना, खास तौर पे जो अखबार अहले हदीस का हवाला था, उसने इनके वो जो कहते हैं ना तंबुओं में गड़गड़ाहटें पैदा कर दी हैं जी। ये जो है ना ये बड़े परेशान हुए उससे। अब आगे वो बात चलेगी तो फिर इन्होंने फिर कहा कि हमने ज़ाहिर है जवाबी तौर पे अवाम को कुछ ना कुछ तो बताना है, तो अब ये फिर अपनी तरफ से कोई इधर की स्टोरी कोई इधर की स्टोरी। और हम जहाँ तक अब्दुल्ला कश्मीरी साहब की बात है, पिछली दफ़ा ही बात कर चुके हैं, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जो कब्र यूज़ आसफ और कब जो मसीह अलैहिस्सलाम की जो कब्र है उसकी जो तहकीक है, उसका तमाम दारो मदार अब्दुल्ला कश्मीरी साहिब के ऊपर अगर होता उस खत के ऊपर, तो फिर तो आप बातें करते। वहां पर तो बाकायदा हमने पिछली दफा बता दिया, अब्दुल्ला कश्मीरी साहिब को भी जो रिसाला फुरकान है उसने यही जवाब दिया था जो दुरुस्त जवाब था। आगे आएगा भी इंशाल्लाह कि जमात अहमदिया के वफूद वहां पे गए हैं, उन्होंने तहकीकात की हैं, तो इसलिए फिर अब्दुल्ला कश्मीरी साहब। लेकिन बहरहाल इनकी गप ये मैंने कहा आपको सुना दूं, आगे से चलते हैं। तो इस तरह की तो बातें हो रही थी आपस में उस वक्त, आप ये देखें इस तरह की बातें हो रही थी आपस में उस वक्त। भाईजान आप मौजूद थे वहां पे। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या फरमाया कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए यही काफी है तो एक बात सुने, बगैर तहकीक किए वो आगे बयान कर दे। ये है जनाब, ये जो आजकल की वो लोग, वो झूठे लोग जो हमारे प्यारे हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हमारे खुलफा के बारे में जुबान दराजियां करने वाले लोग हैं, ये इनका किरदार है प्यारे भाइयों, है जी। और ये खुद भी फिर जाहिर है, ये खुद तो पता नहीं, हमारे सामने तो शर्मिंदा नहीं होते, ढीठ बन जाते हैं, लेकिन अवाम फिर जाहिर है फिर वो शर्मिंदा होते हैं इन लोगों की वजह से कि यार किन्ना लोगों ने अपना वो बना लिया जो लीडर, वो सिवाय दो चार जो इनको सुनने वाले हैं वो उनकी अपनी कुछ मजबूरियों होगी, भड़ास निकाल लेते होंगे, वरना ऐसे लोग खुद तो कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये वो लोग हैं, वो लीडर बनने वाले लोग जो कि खुद तो डूबते हैं, दूसरों को भी ले डूबते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। और आपको जहां बजाय मिर्जा कादियानी की कुतुब से ये बातें मिलती भी हैं, तो अक्सर कहता है कि मैंने जो है ना ये सलीब का जो अकीदा है ये जो मैंने तोड़ दिया है, जो हदीस में आता है। जी प्यारे भैया, अब देखें ये भी इन्होंने, वो कहते हैं ना वो कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किताबों में जहां जहां पर भी कसर सलीब का जिक्र है, वहां पर क्या अक्सर जगह पर ये कब्र कश्मीर का जिक्र है? नहीं। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुनियाद तो है ही 30 आयात के ऊपर, कुरान पाक के ऊपर। आप उसको गलत ट्विस्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गोया मसीह सलाम ने ये लिखा हुआ है। अवाम को देखें, आधा सच भी अगर आप बता रहे हैं उसको ट्विस्ट करके, तो वो भी आधा सच भी झूठ होता है। शमसुद्दीन साहब, आपने अगर ये बात बतानी थी तो पूरी बताते कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान पाक के ऊपर बुनियाद रखते हुए ये बयान किया कि मैंने कसर सलीब कर दिया, नंबर 1। दूसरा, बाइबल के वो हवालाजात
जो कि आपने क्रिश्चियंस लोगों को दिखाए और बाइबल के अंदर से कसर शरीफ की है, जब आपने ये साबित किया है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम आसमान पे नहीं उठाए गए, इसलिए तुम्हारा कफारा का अकीदा हरगिज हरगिज दुरुस्त नहीं है। लेकिन आप कहाँ पे लेके जनाब अवाम को झूठ बता दिया। वो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो शरीफ को तोड़ देंगे, तो मैंने इसको कर दिया। तो इंशाल्लाह जब हवाला आएगा तो फिर हम दुकानदार साहब आपके सामने लगाएंगे। ठीक है जी, हवाला आएगा तो फिर ये सामने लगाएंगे। हाँ जी। और शमसुद्दीन साहब, जब हवाला आता फिर आप हवाला पेश करते तो फिर तो कोई बात होती। अब आप बगैर हवाले के आप यूं करके जो आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऊपर उल्टा पड़ गया है, आप बर्दाश्त करें। चलिए जी आगे देखते हैं दुकानदार साहब क्या कहते हैं। आज कुछ नेट में प्रॉब्लम है हमारी। अहमदियत के दिल दादा थे जनाब 50 साल तक। 50 साल एक लंबा अरसा है। अच्छा प्यारे भैया, ये अजीब बात है, हम जब भी इनके प्रोग्राम की वीडियो चलाते हैं हम भी उसको फास्ट करके चला सकते हैं, लेकिन ये लोगों के वो कहते हैं ना जानबूझ के ये हरकतें करते हैं। 3.5 घंटे लंबे प्रोग्रामों में भी हमारी वीडियो ये फास्ट चलाते हैं। अपने वो जायद साहब की इन्होंने वीडियो चलाई कॉल की, वो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे। यही आपको बताता है कि इनको भी अंदर से पता है कि हमने फास्ट चलाएंगे, लोगों को हमने बेवकूफ बनाना है, तो हम जल्दी से चला के अपने जो कमेंट्स हैं उसके ऊपर ऐड करते हैं। ठीक है जी। अभी आगे भी अब हम आपको दिखाएंगे कि क्या मतलब है। ये जब हमारी वीडियो चलाएंगे जो हमने दिखाई थी, तो उसको फिर इन्होंने वो जो कब्र कश्मीर के बारे में जो लोगों की गवाही हैं, इन्होंने उसको भी फास्ट ही रखा है और उल्टा एतराज हमारे पे कर रहे हैं। बहरहाल जब पहुंचेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल आगे चलते हैं। मैं मिर्जा साहब का मुकल्लद था और तकलीफ से इंसान अंधा हो जाता है। सुभान अल्लाह जी। आप एक तरफ कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि गोया नौजुबिल्लाह माज़अल्लाह हजरत मिर्जा साहब ने आपकी तहरीर को तोड़ा मरोड़ा, अपनी तरफ से बातें ऐड कर दी। अब ये देखें मैंने क्या कहा है, तोड़ा मरोड़ा। तो ये भाई साहब जो चूंकि ये इनकी अपनी उर्दू कमजोर है और ये गलत बोलते हैं, ये देखें क्या फरमा रहे हैं। आप फिर भी उनके मुकल्लद रहे 50 साल तक। अच्छा जी, कहते हैं अभी कह रहे हैं कि तरोरा मरोरा ये देखें जी। अब मैं दोबारा आपको सुनाता हूँ, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना ये चाहता हूँ कि ये इतने बुखलाए हुए हैं उन हवाला जात के बाद कि इनके और लगता है सुनवाई के ऊपर भी असर हो गया है। सुनना भी इनको जो है वो कुछ और आता है। कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि गोया नौजुबिल्लाह माज़अल्लाह हजरत मिर्जा साहब ने आपकी तहरीर को तोड़ा मरोड़ा। ये देखिए मैंने कहा तोड़ा मरोड़ा, इनको सुनाई कुछ और आया है। बहरहाल आगे चलें। से बातें ऐड कर दी। आप फिर भी उनके मुकल्लद रहे 50 साल तक। अच्छा जी, कहते हैं अभी कह रहे हैं कि तरोरा मरोरा जी मेरे भैया सुना जी इनकी। अच्छा आगे चले। और फिर आप 50 साल तक हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तकलीफ में अंधे रहे। ये कोई बात है? ये जरा प्यारे भाइयों जरा गौर से सुनिएगा। ये बेचारे अपनी मोहतरमा पाइस पीर साहबा को जो है वो कवर करने के चक्कर में ये हवाला लेके आए थे, उल्टा पड़ गया इनके ऊपर। जी डॉक्टर साहब सॉरी, अगर आप इसका टाइम नोट कर लें यहाँ से, तो मैं थोड़ी सी मैं जरा माजरत के साथ, इन्होंने 10 मिनट 45 सेकंड पर अगर इसको थोड़ा सा अगर आप चलाएं ना, तो ये जो आपका जो लफ्जों की यहाँ निकाल रहे हैं ना, सिर्फ 10 मिनट 45 सेकंड से इसको जरा चलाएं। अगर 45 सेकंड अगर चला सकते हैं तो। नहीं इनकी वीडियो या जो मैंने बनाई है, इनकी यही वीडियो नहीं मैंने तो भी नहीं ये वीडियो मुबारक भाई जो इनकी वीडियो है ना, उसमें से मैंने उसको डाउनलोड कर। अच्छा हम लिंक लगा देंगे वैसे। तो ये इन्होंने वहां पे जो वो बैठे हुए ना इनके एक मेंबर, उनका नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, चश्मे वाले हैं वो। अच्छा। तो उनकी शर्ट का रंग मैरून है, तो उनको कह रहे हैं कि देखें जी कितनी खूबसूरत शर्ट पहनी हुई है मैरून रंग की। अच्छा ठीक है। तो ये दूसरों की गलतियां निकालने से पहले खुद अपनी गलतियां देख लें। अगर इसी स्ट्रीम को इनकी
गलतियां निकालने लगे तो शायद ये यहाँ बैठने के काबिल भी नहीं है। बहरहाल सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया, आप कोई जारी बात, बाबर भट्ट साहब को इन्होंने कहा था, है जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चले जी, बार जज़ाकल्लाह, आगे चलते हैं। ये सुने प्यारे भाइयों। अच्छा जी आगे चलिए। जैसा कि मेरा बयान शाया होने के बाद भी मुकल्लिदीन कादियान अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अब यहाँ पे कितनी मजे की बात कर दी उन्होंने कि चूंकि मैं मुकल्लिद था मिर्जा कादियानी का और मुकल्लिदीन अंधे हो जाते हैं। अब यहाँ पे कितनी मजे की, अच्छा ये प्यारे भाइयों, इसके ऊपर इन्होंने ये बात की कि जी मैंने तो पाई स्पिरिट साहिबा से जाके पूछा है जी, और उन्होंने कहा, क्योंकि हमने उनको ये कहा था, हमने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था, यस किया था कि ये जो इन्होंने फिक्रा बोला है ना कि मुकल्लिदीन जो हैं और तकलीद से इंसान अंधा हो जाता है, जो फिक्रा था मैं दोबारा एक दफा मैं दोबारा सुन लूं। बात कर दी उन्होंने। अब यहाँ पे कितनी मजे की, अच्छा ये उन्होंने बाईस पीरियड साहब ने जो फिक्रा बोला था ये सुने जरा। हो जाते हैं। अब यहाँ पे कितनी मजे की बात कर दी उन्होंने। अब यहाँ पे कितनी मजे की बात कर दी उन्होंने जी। अब यहाँ पे बाईस पीरियड साहब जो कह रही हैं कि मैं ये वो जो थे अब्दुल्ला कश्मीरी साहब कि मैं किसी वजह से मिर्जा साहब का मुकल्लद था और तकलीद से इंसान अंधा हो जाता है। अब इसको खाकसार ने पिछले प्रोग्राम में अर्ज किया था कि ये जो बात की है ना उन्होंने कि तकलीद से अंधा हो जाता है, ये दरअसल चूंकि खुद पायस पीरियड साहबा जो हैं वो गैर मुकल्लद हैं, अहले हदीस हैं, इसलिए इन्होंने ये फिक्रा बोला है। ये कहते हैं जी मैंने उनसे जाके पूछा, उन्होंने कहा लानत है झूठे पर, कि गोया उनका ये मतलब नहीं था। अब इसके जवाब में खाकसार इतना ही अर्ज करेगा, अपने फिक्रे पर गौर करें मोहतरमा, आपने यहाँ पे कहा कितने मजे की बात कर दी उन्होंने। ये अब्दुल्ला कश्मीरी साहब ने यहाँ पे नहीं लिखा, ये पायस पीरियड साहबा ने खुद ये फिक्रा वहां पे बोला है, कितने मजे की बात कर दी उन्होंने। अब आप फिर खुद हमें एक्सप्लेन करें कि ये जो बात है कि तकलीद से इंसान अंधा हो जाता है, ये पायस पीरियड साहबा आपको इतनी मजे की क्यों लगी है जी? अगर आपको ये बात, आप इसके साथ अग्री नहीं करती, अगर ये आप यकीन नहीं करती या ये नहीं रखती कि वाकई तकलीद से इंसान अंधा हो जाता है, जो कि गैर मुकल्लद रखते हैं इस बात पे यकीन, तो आपने ये बात क्यों की? अगर आप इस बात को एक्सप्लेन करें, और जब आप एक्सप्लेन करेंगी तो वो जो आपने कहना झूठे पर लानत, इंशाल्लाह वो वापस अल्लाह के फजल से वो वापस आपके ऊपर पहुंच जाएगी। मैं दोबारा आपको सुना देता हूँ। अब यहाँ पे कितनी मजे की बात कर दी उन्होंने, सुने देखा प्यारे भाइयों, कितनी मजे की बात कर दी इन्होंने भी। इनको इतनी मजे की बात लगी क्यों है, ये सवाल है। अब यहाँ पे कितनी मजे की बात कर दी उन्होंने कि चूंकि मैं मुकल्लद था मिर्जा कादियानी का और मुकल्लदीन अंधे हो जाते हैं। जी प्यारे भाइयों, बहरहाल ये इन्होंने चूंकि वहां पर काफी इस बात के ऊपर ड्रामा किया था आपस में, वो जो थे हजरत अल्लामा जाहिद साहब वो भी इसके ऊपर उछल कूद कर रहे थे, तो खाकसार ने सोचा कि इनकी जो गलत बातें हैं वो हम वापस लौटा दें। बहरहाल आगे चलते हैं। तो अब देखिएगा कि ये जो कादियानी यही है, ये आगे वहां एक बंदे को पेश कर रहा है। ये देखें प्यारे भाइयों, ये जो अहले हदीस शम्सदीन है, अहले हदीस शम्स, ये देखें यहाँ पर हमने जो वीडियो पेश की है, उस वीडियो को इन्होंने किस तरह से है जी, इन्होंने फिर फास्ट वहां पे चलाया है, और आगे देखेंगे बातें क्या कर रहे हैं, और अपना सबूत दे रहा है। सबूत जो हमने दिए हैं वो देखिए, मगर हम फिर भी आपको दिखाते हैं जी, सुनिए जी। क्यों जी? जो आपने सबूत दिए हैं वो आसमान से उतरे हैं शमसुद्दीन साहब, जो हम सबूत दे रहे हैं वो क्यों ना आवाम देखे। आप या हम कौन होते हैं कहने वाले अवाम को कि जी दूसरे का सबूत ना देखो? हम तो कहते हैं शमसुद्दीन साहब के भी सबूत देखें, और पहले दो तसी सबूत। बहरहाल फिर भी हम कहते हैं कि शमसुद्दीन साहब के भी सबूत देखें, सब इनके भी सबूत देखें, हमारे भी देखें, फैसला खुद कर लें। हम क्यों लोगों को कहें कि जी शमसुद्दीन साहब के सबूत ना देखें? लेकिन ये देखें वो जो खटका है इनके दिल में कि हो वीडियो ने तो मरवाता जी सानू है जी। अब उस वजह से क्या कह रहे हैं जी अवाम को कि जी इनके गोया सबूत ना देखें। सुने जरा, कादियानी यही है, ये आगे वहां एक बंदे को पेश कर रहा है और अपना सबूत दे रहा है। सबूत जो हमने दिए हैं वो देखिए, मगर हम फिर भी आपको दिखाते हैं जी, सुनिए जी। Have you heard of the Jesus tree? Jesus. Oh, I know in Sri Lanka. Okay. ये देखिए उस बंदे ने, ये जो अंग्रेज है उसने कहा है
کہ کیا تم نے جیسس کا مقبرہ جو ہے اس کے بارے میں سنا ہے؟ تو یہ بندہ اسٹریٹ وہاں پہ گیا ہے روزہ بل کے بارے میں، ٹھیک ہے جی، حالانکہ اس کا اپنا عقیدہ یہ نہیں لگتا کہ یہ وہاں پہ مانتا ہے، لیکن یہ فوراً وہاں پہ گیا ہے روزہ بل کے بارے میں. اب یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جیسس کا وہ ہے مقبرہ، ٹھیک ہے جی، لیکن ہم یہاں پہ اس کو یوز اثر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا یہ میرے بھائیو، یہ جو خاکسار نے ان کی ٹرانسلیشن کی ان کی کہ لوگ کہتے ہیں، یہ دیکھیں اس کے اوپر وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ آپ کو محاورہ یاد آئے گا. شمس الدین صاحب کی اس کے اوپر ایکسپلینیشن سنیں حضرت علامہ شمس الدین صاحب کی، اور پھر گپیں اس کے بعد مزید گپیں. روکیے جی بابر بھٹ صاحب، اسی میں آپ کو سوال کا جواب ہی مل گیا. یہ جو کہتے ہیں نا یہ جو لوگ کہتے ہیں، یہ قادیانی لوگوں کا صرف ذکر ہو رہا ہے کہ قادیانی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقبرہ ہے. یہ دیکھیں پیارے بھائیو، وہ جو بندہ بیٹھا ہے اس نے کوئی لفظ بولا قادیانی، کوئی ذکر کیا؟ ہرگز نہیں کیا. یہ پھر بھی بھائی صاحب ہے جی، اور پھر یہ بابر صاحب وہ میں پھر کہوں گا بہرحال وہ کہتے ہیں کھاجے دا گواہ ڈڈو ہے جی. تو وہ بابر صاحب بھی وہ بجائے اس کے کہ گئے حضرت وہاں پر تو اس نے قادیانی نہیں کہا، انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں، لوگ سے کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے ہاں جی. لیکن آپ کی نے خام خواہ اس کی تشریح ایک معین کر دیا، اس کو غلط طور پہ معین کر دیا. لیکن بہرحال یہ جناب آگے ان کی بات سنیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ کس کا ہے؟ یوز آصف کا. یہ دیکھیں جی، یہ ان کی حالت ہے. بہرحال آگے اور بڑی مزیدار ایک ویڈیو کے بعد ان کا اشر دیکھیں ابھی کیا ہوا ہے، سنیں ذرا. یہ آگے لے کے چلتے ہیں. یہ تو جو جیسس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ قادیانیوں نے باقاعدہ مرزا قادیانی، یہ پیارے بھائیو یہ ہاں کیا بات ہے جی گپے مارے نا، تھیوری ان کے سنیں بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے گپے سنیں ان کی. پھر باقاعدہ یہاں پر ٹیمیں بھیجی جا کے کہ بھئی آپ لوگ وہاں پہ جو بھی انگریز آئے اس کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو قبر ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. آپ یہ دیکھیں پیارے بھائی، گپے مارنے کیوں پڑ رہی ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں جن میں سے ہم کچھ دکھلا بھی چکے ہیں کہ جو غیر جانبدار لوگ ہیں، وہ جو کٹڑ جو وہاں کے جو مسلمان ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے غیر احمدی مسلمانوں کی، جو ہم بات کر رہے ہیں غیر جانبدار لوگوں کی، یا ان مسلمانوں کی بھی جو کہ غیر جانبدار ہو کے سچ کی بات کر لیتے ہیں، جو آگے بھی ویڈیو ایک آئے گی جس پہ شمس الدین صاحب بکھلائے ہیں وہاں پہ. وہ اس قبر کو ان کو بھی پتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی قبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جو محققین ہیں ان میں سے ایک بھاری اکثریت چونکہ اس کو حضرت عیسیٰ کی قبر کہتی ہے، جیزس کی قبر کہتی ہے، اس لیے اب ان کو پتا ہے کہ ہمارے حوالے اور آئیں گے. اب یہ اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ اس سے پہلے کہ مزید حوالے ہیں، یہ ایک تھیوری پیش کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو بھیجتے تھے جی، لوگوں کو بھیج کے کہتے تھے کہ تم یہ ہے جی جیزس کا مقبرہ، اور خود ہی یہ گویا اس بات کو مشہور کرواتے تھے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے، جھوٹ گھڑ کے لوگوں کو بیوقوف بنانا. سبحان اللہ. تو بھی باہر سے فارنر آتے تھے سیر سپاٹے کے لیے وہاں پہ دیکھنے کے لیے، تو وہاں پہ قادیانی جو ہے وہ گشت کر رہے ہوتے تھے تو خود اس کے پاس چلے جاتے تھے، اس سے پوچھتے تھے اور پھر اس کو بتاتے تھے کہ یہ جو روزہ بل ہے یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. اب وہ لوگ بڑے حیران ہوتے تھے، انہوں نے کبھی زندگی میں سنا ہی نہیں. اچھا اب یہ ایک ان کا کیا کہہ لیں کہ یہ شگوفے چھوڑنے والی بات تھی کہ یہ پھر ان کو اس بات میں بھی کہتے تھے، ہمارے پاس انشاءاللہ حوالہ موجود ہے، ہم وہ لگائیں گے. ہاں جی حوالہ موجود ہے، لگائیں گے، لیکن گپ ابھی چل رہی ہے. سنیں ذرا ان کی گپ. یہ اس بات میں بھی اس کو کہتے تھے کہ جب آپ جا کے اپنا سفر نامہ لکھیں گے نا تو اس میں یہ بات لکھ دیجیے گا کہ یہ قبر عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. اب یہ دیکھیں پیارے بھائیوں ہے جی، تو وہ ایڈے پاگل سن کہ وہ ان کی طرح ہوائی باتوں پہ یا وہ بندے چھوڑے ہوئے ان کی باتوں پر یقین کر کے اپنے ملک میں جا کے اپنے عقیدے کے خلاف اسی بات پر جو جس کی وہ تحقیق نہیں کر پائے اس پہ جا کے لکھ بھی دیں گے. شمس الدین صاحب وہ آپ نہیں تھے، وہ گورے تھے، ٹھیک ہے، یا وہ کوئی بھی تھے، ٹھیک ہے، وہ ہر بندہ آپ نہیں ہوتا،
कि बगैर तहकीक के और बगैर किसी बुनियाद के बातों को उछालता फिरे। अच्छा बिल्कुल। अच्छा उसमें ये है, एक तो बंदा पूछे तानू कितना पता चला जी, वो तो मिर्जा साहब ने बंदे छोड़े हुए थे हैं जी आपके बकौल। ऐसे लग रहा है ये वैसे वहां पे मौजूद थे उस वक्त। नहीं वो बंदे जो कहते थे ना जाके अहमदीन के बकौल अंग्रेजों को, वो तो उसकी कॉपी करके शमसुद्दीन को भेज देते थे। हाँ जी। वो बच्चों की कहानियां सुने ना तो उसमें ऐसे ड्रामे आपको मिलेंगे कि वो बात से बात जोड़ के और अपनी तरफ से घड़ घड़ के उसको खड़ा कर लेते हैं मीनारे की तरह। तो बिल्कुल आज वही जो हम सीन देख रहे हैं इनका, हजरत साहब का। मुबारक भाई ये कसूर आपका, तानू क्या किन्ने क्या से क्या ले दी सलाह तुसी मजमून पढ़ दो, वो तो उनकी तो वो ठीक ठाक जो है ना, वो उनकी तो बिल्कुल बुनियादें हिल गई हैं। नहीं फिर ये उसको उनको पकड़े ना मौलवी साहब, अपने जो बटालवी साहब हैं, ओ सॉरी सनाउल्लाह साहब हैं, वो हाँ जी, उनको पकड़े फिर उनसे मुझसे पहले तो उनको जाके पूछे ना उनको क्या जरूरत थी लिखने की। नहीं वो उन्होंने उसका हल ढूंढ लिया है, वो मैं आपके आगे सुनाता हूँ। ठीक है ठीक। तो वो लोग फिर अपने उन चीजों के अंदर लिख देते थे कि हम वहां गए तो हमें वहां पे लोगों ने बताया कि ये कब्र ईसा अलैहिस्सलाम की है, जबकि वहां पे जितने मुसलमान थे उनमें से कोई भी नहीं कहता था। उसकी गवाही इस दुकानदार की अपनी आवाज में मौजूद है कि उस बंदे ने कहा कि हम इसको यूज़े असफ की कब्र कहते हैं। अच्छा प्यारे भैया, ये भाई साहब जो है ना बोलते बोलते वो गप्पे शप्पे मारते मारते भूल गए कि जो हमने वो जो दूसरी वीडियो बनाई चलाई थी वो इन्हीं के भाई साहब है। उन्होंने वाज़े तौर पर गवाही दी कि हाँ ये जीसस का वो ये आगे करके मकबरा है। ठीक है जी। अब ये बोल शोल के जाहिर साहब ने भी अभी कुछ फिक्रे कहे हैं, उसके बाद इन्होंने चलाई वो वीडियो। जब वीडियो चली है जी, तो शमसुद्दीन साहब का रंग आप देखिएगा। फिर उन्होंने कहा चलो जी इसको आगे चलाएं जी, आगे चलाएं। वही गवाही है जो पहले भी थी। वो बड़ी मजेदार है, जरा गौर से जरा उसको देखें। तो इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है हमें तबसरा करने की जरूरत ही नहीं कि अपनी बात और दूसरे के मुंह में डालने की कोशिश भी की लेकिन फिर भी नाकाम हो गए। तो झूठ जो है वो इसी का नाम है, और झूठ भला किसको कहते हैं। चलिए बहरहाल आगे चलते हैं जी, देखते हैं। अच्छा चले, ये भी वही है, एडमंड से आगे लगा दीजिए जी। ये भी वही है एडमंड साहब, जरा इसको आगे लगा दीजिए है जी। ये हालत है मुबारक भाई इन लोगों की कि जो गवाहियां हैं वो बेचारे शामिल तो कर बैठे ना। अब मसला इनको क्या पड़ा हुआ है, मुझे ही पता है इनको मसला क्या है। अगर ये गवाहियां वो जो हमने सबूत दिखाए इनको पता है कि हम नहीं दिखाएंगे, तो भाई अगले प्रोग्राम में हम तो बताएंगे ना लोगों को कि जी ये सबूत। अब मसलन हमने बताया कि सूले काफी का इन्होंने सबूत टच ही नहीं किया है जी, ये भी हमने लोगों को बताना था कि जी इस वीडियो को उन्होंने टच ही नहीं किया। तो क्या किया, वीडियो चलाई, चलो 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 जी एडमंड साहब आगे चलो, ये भी वही है जी, ये भी वही है। हम आपको अभी दिखाते हैं कि वही है कि क्या है। ये एटम बम है शमसुद्दीन साहब, ये एटम बम है आपके लिए। बहरहाल सुने जी शमसुद्दीन साहब की, उससे पहले गप्पे सुन ले इस बारे में। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं। अच्छा ये साहब जो कि हमारी इस वीडियो को कोई 1000 मील की स्पीड से चला रहे हैं ताकि किसी को कुछ समझ ना आए, ये देखें इतराज हमारे पे क्या कर रहे हैं, सुने जरा। हमने भी एक वीडियो लगाई थी, हमने गवाहियां वहां लोगों की पेश की थी, और आपने इसकी भी आवाज देखी, इन्होंने किस तरह आवाज के अंदर एक अपना भी वो फलसफा शामिल कर दिया कि लोगों को समझ आना आए। और देखिए किस तरह छोटे बिल्कुल इन्होंने उसको यानी कि आवाजों को मिक्स कर दिया है। हम भी आपको एक इंशाल्लाह छोटी सी वीडियो सुनाएंगे, मगर आगे चलते हैं जी मेरे भाइयों। ये बहाना करके कि जी हमने आवाज को मिक्स कर दिया, वो जनाब हमने तो बता दिया था कि यूट्यूब की वजह से हमें आवाज थोड़ी सी मिक्स करनी पड़ी है, लेकिन शमसुद्दीन साहब आपने है जी, आपने वो जो हमने आवाज मिक्स की थी उसको 2000 की स्पीड से जब चलाया है, एक तो आवाम को वो जाहिर है फिर समझ ही क्या आनी थी, दूसरा ये कि आपने ये वीडियो आखिर क्यों उनको कहा कि वो ये जी वो ये चलाओ, आगे कर दो, यानी इसको ना चलाओ। दूसरे लफ्जों में हम आवाम को जनाब वो वीडियो दोबारा दिखा देते हैं ताकि
शमसुद्दीन साहब, अवाम को पता तो चले कि आप किस वजह से घबराए, इस वीडियो से जान क्यों निकली आपकी। ये सुने जी एटम बम। मैं इंग्लैंड से जी 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 आप अच्छा मेरे हिंदी बहुत कम है, उर्दू बहुत कम है ना, मुझको थोड़ा मालूम। शुक्रिया शुक्रिया। तो उर्दू है, हिंदी नहीं, ये तो उर्दू है, आप प्योर उर्दू बोलते हैं। प्योर उर्दू? मुझको नहीं मालूम जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब ये देखें प्यारे भाइयों, ये साफ पता चल रहे हैं ये हमारे कोई गैर अहमदी भाई हैं कि एक तो ये जो अहमदी मुसलमान हैं वो यूं इस तरह से टखनों के ऊपर चलवार आप बहुत कम देखेंगे कि किसी अहमदी ने, बल्कि हम नहीं जो है वो पहनते। ये इन्हीं में मैं सिर्फ एक सिर्फ साफ पता चल रहा है कि ये गैर अहमदी हैं, लेकिन वैसे बात कर रहा हूँ। कल को ये कह दें कि जी ये भी अहमदी थे जी, वहां पे 3 इकट्ठे कर लिए थे इन्होंने, है जी, बिल्कुल ही वो, क्योंकि अब तो बुखला के तो इन्होंने गप्पे तो मारनी है। सुने जी, ये जो हमारे गैर अहमदी वहां पे मुसलमान भाई हैं, उन्होंने किस तरह से शमसुद्दीन साहब को पक्का पक्का झूठा साबित किया है। Jesus is buried in Kashmir. Yes. I don't know, it's true or not? Yes. Yeah? Yes, it is, yeah. Isn't it far? It is not so far. Yeah? It is a couple of 100 meters. Okay. सुना जी, ये वजह थी प्यारे भाइयों, ये जो एटम बम वाली जो वीडियो थी वो शमसुद्दीन साहब की जान निकली और इन्होंने अपने एडमिन को कहा कि आगे चलाओ आगे चलाओ। शमसुद्दीन साहब सिर्फ मुंह से नहीं कहना होता कि असि बड़े हवाले दिखावांगे, है जी। अभी तक देख लें प्यारे भाइयों, हवाले मौजूद ही नहीं है, कहते हैं आएंगे हवाले, फिर दिखाएंगे, यूं करके कह रहे हैं दिखाएंगे, है जी। जी चोर जितना मर्जी सियाना हो पकड़ा तो जरूर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे याद आ गया, मैं माजरत के साथ, एक चोर था, उसने चोरी की तो उस जो मुंह के ऊपर उसने साफा लपेटा हुआ था ना, जिसको पगड़ी भी कहा जा सकता है जी जी, वो जब वो घर वाला उठ गया तो वो उसके पीछे भागा तो दीवार से छलांग लगाने लगा, तो उसकी जो वो साफा था वो कहीं अड़ के गिर गया, वो तो निकल गया। अब वो खुद निकल गया। सुबह जब वो खोजी आया तो उन्होंने ना सबसे पूछने लगे, राय लेने लगे कि ये क्या, किस तरह, मतलब वो ये साफा किस तरह। तो वो बेचारा चोर सफाई देने लगा, खुद ही फंस गया। कहता है जी देखे ना, चोर यहां से आया होगा, उसने यहां से जंप किया होगा और साफा इधर जो पगड़ी है इधर अटकी होगी तो मेरी पगड़ी हो जा पाई। उसको वो रवानी में पता ही नहीं चला कि मैं क्या कह रहा हूं। तो इस तरह के जो होते हैं ना, वो इसी तरह पकड़े जाते होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इसीलिए जिस खाकसार ने जिस तरह अर्ज किया है, गरचे मेरा इरादा था कि आगे बात को चलाई जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये जो गप्पे मार रहे हैं अवाम को, वो भी अवाम को साथ साथ हम जरूर बताना चाहिए कि ये इनकी अब हालतें हो गई हैं। जो बड़े बड़े दावी करते थे, अब भी इनके दावी उसी तरह, वो कहते हैं ना, अंदर से खोखले हो गए हैं, ये लोग हिल गए हुए हैं, लेकिन मुंह से जो इनको चूंकि झूठ बोलने की आदत है, उसी तरह इत्मीनान के साथ झूठ बोलते रहते हैं। अच्छा, ये प्यारे भाइयों, ये हमने पिछली दफा आपको सुनवाया था, दिखलाया था, इस बात को भी इन लोगों ने टच ही नहीं किया जो मैंने कहा था कि ये देखें जी, इन्होंने वहां पर बाकायदा कुरान पाक की आयत लिख के, बाइबल को यहाँ पे लिख के, वहां पर यूं लगता है कि ये जो ईसाई और मौलवी गठजोड़ हुआ है वहां पे, और फिर लोगों को ये गुमराह करते हैं वहां पे कि ना तुसी ना क्या करो, ना कहा करो। बहरहाल इसको भी इन्होंने टच नहीं किया। हम आपको जल्दी से उसको जो है वो सुनवा देते हैं। And Bible says about Jesus Christ. The Holy Quran says that they, Jews, as well as the Jews, said in boast, we killed Christ Jesus, the son of Mary, and the apostle of Allah, but they killed him not, nor crucified him, but so it was made to appear to them, and those who differ therein are full of doubts with no certain knowledge, but only conjecture to follow, for of a surety they killed him not. Nay, Allah raised him up unto himself, and Allah is exalted in power wise. That's quite a mouthful. So far, after Lord Jesus had spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of God. Mark 16.9, King James Version of the Bible. जी मेरे भाइयों, ये इस पूरी बात को इन्होंने टच ही नहीं किया, क्योंकि इसमें ये पकड़े जाते थे। अब ये वो मौजू है जिस मौजू ने महज अल्लाह के फजल से, ये जो हवाला है, इसने इनकी ना, वो कहते हैं ना कि सब कुछ ही हिला के रख दिया है।
बहरहाल सुने ये इसके ऊपर क्या ये इन्होंने किस तरह से इसको शुरू किया है, फिर हम आपको, वो कहते हैं ना हमारी भी अल्लाह के फजल से, मैंने इनको पिछली दफा भी कहा था, मुबारक भाई आपको भी याद होगा कि मैंने हवाला अल्लाह के फजल से हमारे पास मौजूद है अहले हदीस। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने, मैं उस वक्त भी हैरान हुआ था कि आपने ये हिंट इनको दे दिया। अब ये मुझे यकीन था कि इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता चलेगा कि इनके पास हवाला मौजूद है, तो ये उसको टच नहीं करेंगे। लेकिन इंतहा दर्जे की मैं समझता हूं कि इनको समझ नहीं आई या क्या, या इतनी है समझ ही नहीं है कि उसको फिर इसने डिस्कस किया और फिर उसी हवाले से किया। बिल्कुल। अच्छा, उसमें देखें बाज अल्लाह ताला इनकी अकलें मारता है कि बावजूद इसके के खाकसार ने वहां पर कह दिया था, असल में हुआ ये है कि इनके पास अब चारा नहीं था कि और के ये डिनाई कर देते कि ये जमात अहमदिया ने गोया हमने खुद ही हवाला बना लिया है। ठीक है जी, हमसे मुराद मैं नहीं हूँ, मैं जमात अहमदिया नहीं हूँ, मैं तो एक आजिज एक जमात अहमदिया के मेंबर हूँ, लेकिन ये इन लोगों ने जो वहां पे इनके पास चारा नहीं था। और फिर मुमकिन है ये भी वजह हो सकती है कि चूंकि ये लोग खुद, वो कहते हैं ना जो आपने हदीस भी वो सुनी होगी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने ये किया कि या रसूलल्लाह सारी दुनिया के लोग अच्छे हैं, अगर दूसरे ने कहा जी कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, किसी ने कहा जी वो जी सब बुरे हैं, इस तरह की हदीस है, मैं मुय्यन अल्फाज मेरे सामने नहीं। तो उसका नतीजा ये था कि हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उसका नतीजा में बताया कि जो इस तरह का इंसान खुद हो उसको बाकी लोग भी उसी तरह के लगते हैं। यानी ये अल्फाज मेरे हैं, इस तरह की वो उसमें हमें नसीहत हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। ये मुबारक भाई चूंकि खुद झूठे लोग हैं, हवाले घड़ना, हवाले इजाद कर लेना, अपने हवाले निकाल देना है जी, हवालों में से कुछ बातें निकाल देना, बाकी उसकी बजाय कुछ और ऐड कर देना, इनके लिए तो आपको पता ही है बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, इसलिए मुमकिन है ये समझे हों कि हमने भी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात की है। हालांकि शमसुद्दीन साहब आप बड़ा कहते हैं जी कजन जी कजन जी कजन जी, आपको अभी तक यही नहीं पता चला है जी, जमात अहमदिया मुसलमान और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये अदना खादम जमात का आज तक कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई बात पेश की हो और वो हवाला मेरे पास मौजूद ना हो। ये कान खोल के सुन लें ताकि आइंदा आपके काम आएगी ये बात। बहरहाल जी सुने जरा। वो लिखते हैं बहुत सी रसूमात यहूदियों की रसूम। अच्छा जी, ये बाबर भट्ट साहब, इस पे आपने और तमाम हमारे जो नाज़रीन सुनने वाले हैं तवज्जो से बात सुनिएगा जी। अब ये जी अल्लामा हजरत अल्लामा है जी मुहक्किक शमसुद्दीन साहब की तवज्जो, सारे लोग ना तवज्जो से इनकी बात सुने, बड़े कम निकल जाए कि ये इन्होंने एक अखबार पेश किया और इन्होंने कहा कि ये अहले हदीसों की अखबार में ये छपा है, ये कोई मिलिट्री गजट था उसके अंदर मजमून छपा, फिर सनाउल्लाह साहब ने अपनी उसमें मजमून छाप दिया अपनी अखबार में। पहले जो उलमा थे उनमें फिर भी कुछ ये इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि जिनमें हया थी, आजकल के जो ये आए हैं लड़के यानी हमें कांड कर रहे थे। तो आपने ये जो अभी बंदा पढ़ेगा ना इसमें से हवाला, इसको बड़ी तवज्जो से सुनना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 नंबर इन्होंने इसमें क्या की है। दुकानदार साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जिस बंदे ने कादियानी कुतुब पढ़ी है ना, वो आपकी बातों से ही आपको पहचान जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है कि इस पे किसी हमारे दोस्त की तवज्जो ना गई हो, अक्सर जो खत्म नबूवत का काम करने वाले उनकी तो चली गई होगी तवज्जो कि आपने यहाँ पे ये ब्लंडर किया और झूठ बोला है। शमस भाई मादरत के साथ ये प्यारे भाई वो जो कहते हैं ना, वो चौधरी साहब ने जो एक रखा होता है जी, ये उनकी बात भी सुन लें। शमस भाई, जब इन्होंने ये अल फजल का जो है ये पढ़ा था वहां पे, तो मैंने ये तलाश करने की कोशिश की थी असल अखबार अहले हदीस ना, क्योंकि जब इन्होंने रेफरेंस बतौर अहले हदीस अखबार जिक्र किया ना, तो मुझे उसी वक्त शक मुझे उसी वक्त पड़ गया था कि इन्होंने इसमें कोई ब्लंडर मारा है, इन्होंने इसमें कोई 2 नंबरी की होगी, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि कादियानी और 2 नंबरी ना करें, जालसाजी ना करें, ये हो ही नहीं सकता।
तो इसके मैं स्क्रीनशॉट आपको दे सकता हूँ कि जिन भाइयों को मैंने, वो अगर सुन भी रहे हो, जिनको मैंने मैसेज भी किए थे इस अखबार के लिए कि मुझे इसके असल जो है वो ये स्कैन चाहिए। प्यारे भाइयों, इससे पहले कि हम आपको वो जो अहले हदीस है वो आपको दिखाएं, ये मुबारक भाई शमसद, ये जो है ना जाहिद साहब, इनके ने ये जो बात की कि मैं जी व्हाट्सएप पे बड़े मैसेज किए, तो मैं दिखा भी सकता हूँ। वो मुझे एक आपने वाकया सुना होगा, कहानी के तौर पे जो है वो हमें सुनाया जाता था। वो कहते हैं जी एक जंगल में एक बंदर जो था ना, उसके दिल में ही आया कि ना बादशाह मुझे होना चाहिए, मैं इतना तेज फुर्तियों वाला बंदा हूँ, फुर्ती वाला जानवर हूँ, मैं शेर क्या चीज है, मैं तो ये जा वो जा इधर जाता हूँ, इस दरख्त पे उस दरख्त पे। तो उसने बहरहाल बाकी जमहूरियत ही जी कहते हैं कि वहां पे उन्होंने ना वोटिंग हुई, तो वाकई उन्होंने कहा बंदर वाकई बड़ा तेज है, बड़ी इसकी फुर्ती है, तो इसको बादशाह होना चाहिए। उन्होंने उसको बादशाह मुंतखब कर लिया। अब उसकी किस्मत खराब, कुछ ही दिनों बाद साथ वाले जंगल के जो थे जानवर, जो शेर थे, उन्होंने हमला कर दिया। अब उन्होंने जानवरों को खाना शुरू कर दिया, और ये जो बंदर साहब थे, इनकी फुर्तियां, ये कभी इस दरख्त पे जाएं, कभी उस दरख्त पे जाएं, कभी इधर जाएं, कभी उधर जाएं। वो शेरों ने जानवरों को खा खा के जितने खाने थे वो चले गए वापस। तो फिर ये जो हजरत अल्लामा वहां पे मौजूद थे, बादशाह बनने के शौकीन फुर्तियों वाले, वो दरख्त से नीचे उतरे। तो जानवरों ने शिकवा किया कि जनाब वो आप बादशाह हैं, सानू बचाया नहीं। तो कहते हो तुसी देखा नहीं मेरी फुर्तियां किनियां सी, मैं इधर गया, मैं इधर गया, मैं उधर गया, मेरी दौड़नियां, मेरी आनियां जानियां नहीं देखियां, तुसी सारी शर्म आनी चाहिए। तो ये जो जाहिद साहब हैं, इनकी फुर्तियां हैं जी, इन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किए, कहते हैं जी हाँ व्हाट्सएप पे मैं मैसेज आपको दिखा सकता हूँ। अजीब लोग हैं, पता नहीं इन लोगों की अकलें मारी गई हैं इस बात में, क्या बात है। ओ भाइयों, ये इल्मी दुनिया है, आपने चाहे 1000 लोगों को मैसेज किए हों, आपको अगर हवाला नहीं मिला तो आपको हवाला या तो मिलने का इंतजार करना चाहिए था। तब तक इस बात को यही कह देते कि जी हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, हवाला जब मिलेगा इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। कोई इल्मी बात होती, हमने भी उसके ऊपर क्या कह देना था, हमने भी इंतजार कर लेना था, है जी। फिर पता नहीं आप पेश करते ना करते, हम 2000 दफा उसको दोहराते, फिर हम भी चुप कर जाते। लेकिन मुबारक भाई देखिए अल्लाह ताला ने इनकी अकलें कैसे मारी हैं कि ये इन्होंने उस हवाले को, वो जो हवाला हमने पेश किया था, मैं अब वो हवाला भी दिखा देता हूं दोस्तों को, साथ आपको जो असल जो अहले हदीस है उसको भी मैं आपको साथ दिखा देता हूं, उसका जो हमारे पास है सफ़ात वो वाले। ये प्यारे भाइयों अखबार था अल फजल जो हमने पेश किया था, 2 सफ़ात थे इसके, ये इसका पहला हिस्सा, पहला सफ़ा था, हाँ जी, ये मुबारक भाई ने पढ़ा था, और उसके बाद वो दूसरा हिस्सा भी था, ठीक है। और इसमें देख लें, ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि मौलवी, ये सनाउल्लाह के अखबार अहले हदीस मोरखा 5-14 अगस्त 1904 में एक मजमून शाया हुआ था। और शमसुद्दीन साहब, आपने देखा प्यारे भाइयों, ये मुसलसल आगे भी ये इसी तरह की बातें करेंगे कि गोया हमने ये अखबार खुद ही, अहले हदीस जो है वो इस तरह का कोई नहीं है, ये जनाब गोया हमने कोई इल्ज़ाम लगा दिया है। और ख़ास तौर पर इन्होंने 2 हवाला जात पढ़े, ये नंबर 4 और नंबर 5 है जी, कि जो बनी इसराइल वाले हैं उनके साथ मुशाबहत देते हुए इन्होंने ये लिखा था नंबर 4 में, उनकी बहुत सी रसूमात यहूदियों की रसूमात से मुशाबे हैं, ठीक है जी। मसलन अफगान मंगनी और शादी में कोई फ़र्क नहीं करते। अच्छा, और साथ ये था, यहूदियों की तरह अफगान भी जूद रंज, खुद गर्ज, सरकश, कुंद जहन, जाहिल, तुंद मिजाज, खूंखार, सख्त दिल, कजरो वगैरह वगैरह होते हैं। अब शमसुद्दीन साहब, हजरत अल्लामा शमसुद्दीन साहब ने प्यारे भाइयों ये बाकी सारी बातों को जो है वो मुकम्मल तौर पर डिनाई किया कि इस तरह का कोई अखबार सिरे से गोया मौजूद ही नहीं। और इन 2 हवाला जात से मिलती जुलती बातें जो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने अपनी किताबों में लिखी थी, वो बयान करके पता नहीं इनकी अकलें मारी गई हैं। ये साबित करने की कोशिश की कि देखें जी देखें, ये तो बहुत बातें वो हैं जो मिर्जा साहब कहते थे, तो गोया गोया क्या साबित हुआ कि ये तो मिर्जा साहब की बातें हैं, अखबार अहले हदीस कभी कह ही नहीं सकता।
हालांकि ये नहीं सोचा कि जनाब अगर वो अहले हदीस अखबार निकल आया जिस तरह के निकल आया जाए, है जी। ये मुबारक भाई ये देखें, आपको नजर आ रहा है ये? जी जी जी, अब साफ है, जूम हो गया। ये देखें जी, अखबार अहले हदीस, ये 5 अगस्त 1904, ठीक है जी। और इससे पहले के खाकसार वो सफ़हात दिखाए इनको। ये देखें प्यारे भाइयों, जो अखबार अहले हदीस है ना, इसकी जो अगराज अखबार हाजा, इसमें से ये पढ़े नंबर 3, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कौन सी है? मुसलमानों की थी? नहीं, तो अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी। 1904 केड़े मुसलमानों की गवर्नमेंट सी उत्थे जी। गवर्नमेंट और मुसलमानों के ताल्लुकात की निगहदाश्त करना, है जी। ये अहले हदीसों के जो अखबार है उसकी जिम्मेदारियों में से एक था, एक गर्ज थी उसकी, और ये हमारे पे एतराज करते हैं। बहरहाल ये हमारा आज का मौजू नहीं है, मैंने कहा बल्कि दिखा दूं। अच्छा, उसके बाद प्यारे भाइयों, अल्लाह के फजल से ये है उस अखबार का सफ़ा नंबर 13। ये पढ़ लें, देख लें, मैं इसको जूम कर देता हूँ, शमसुद्दीन साहब भी पढ़ लें, बाकी भी पढ़ लें। ये देख लें जी, अहले हदीस अमृतसर 12 अगस्त 1904। जिस तरह के पहले ही मैंने कहा था, मुझे लगता है ये गालिबन शायद 10 रोज़ा निकलता होगा या हफ्ते में एक दफ़ा निकलता होगा, इसलिए 5 और 12 या 5 और 14, मुझे डेट अब याद नहीं है, जो वहाँ पे लिखा हुआ था अल-फजल में। अब बात ये है जो मैं इनको दिखाना चाहता हूँ, जनाब हजरत अल्लामा शमसुद्दीन साहब, आप तो जिस तरह के प्यारे भाइयों हम आपको आगे दिखाएंगे भी, ये तासुर देने लगे कि जी अगर अहले हदीस में कोई बात आई भी है ना, तो वहां पर हजरत यानी मिर्जा साहब के मुखालिफ जो है उन्होंने कोई बात लिखी होगी उसके खिलाफ, और कहा होगा कि जी मिर्जा साहब तो ये कहते हैं, हम नहीं मानते। अब ये देखें प्यारे भाइयों, नंबर 4, ये अखबार अहले हदीस 12 अगस्त 1904, सफ़ा नंबर 13। और ये भी अल्लाह का फजल ही है, मैं जब इसको देख रहा था कि इनकी प्रिंटिंग और तरह की है। अल फजल की प्रिंटिंग ये देखें और तरह की है, ठीक है। इसमें ये हवाला ये देखें 4 और 5, ठीक है जी। और ये अखबार अहले हदीस में जो 4 और 5 है वो यहाँ पे है, 4 और 5। ये भी नहीं कह सकते कि जी तो इन्होंने कट के तैयार करता। अच्छा, नंबर 4, रस्म और रवाज की शहादत। इनकी बहुत सी रसूमात यहूदियों की रसूमात से मुशाबे हैं। मसलन अफगान मंगनी और शादी में कोई फर्क नहीं करते, और शादी से पहले अक्सर लड़के और लड़की में बेतकल्लुफी रहती है। बसा औकात ऐसा होता है कि शादी से पहले औरतें हामला भी हो जाती हैं। शमसुद्दीन साहब, ये है हवाला। वो कहते हैं ना ਤੁਹਾਡਾ बैग किधर, तो आपके बैग में क्या है अभी सवाए गप्पों के, हैं जी। फिर कहते हैं हवाला हम ही देंगे। ये प्यारे भाइयों अगला नंबर 5, ये इन्होंने ये कहा कि गोया ये अहले हदीस में तो ये आ ही नहीं सकता जी, ये तो मिर्जा साहब इस तरह की बातें लिखते हैं। अब क्या साबित हुआ, जहां तक अफगानों और कश्मीरियों का ताल्लुक है कि ये किस नस्ल से हैं, अहले हदीस और मिर्जा साहब एक ही पेज पे हैं। शमसुद्दीन साहब, ये जो आजकल की आपकी है ना जो मुजाहिदीन खत्म नबूवत, वो अपना देख लें फिर किधर है वो। और जो आप फतवे आपने हजरत मिर्जा साहब के बारे में दिए अपने प्रोग्राम में, वो आप दे दें मौलवी सनाउल्लाह साहब के बारे में भी। अच्छा जी, ये देखें, यहूदियों की तरह अफगान भी जूद रंज, बिल्कुल वही इबारत है। खुद गर्ज, सरकश, कुंज जहन, जाहिल, तुंज मिजाज, खूंखार, सख्त दिल, कजरो वगैरह वगैरह होते हैं इस इबारत में। और जो अल-फजल में प्यारे भाइयों छपी ये वाली इबारत, उसमें बताएं जी क्या फ़र्क है जी। ये वाली इबारत, ये मैं दोबारा इसको मोटा कर देता हूँ, ये देखें क्या फ़र्क है इन दोनों इबारतों में। और शमसुद्दीन साहब, ये प्यारे भाइयों आगे ड्रामा, मैं आपको इनकी वीडियो दिखाता हूँ, क्या क्या ये वहां पर झूठ बोलते रहे और अवाम के सामने ये तासुर देते रहे कि गोया इस तरह कोई अखबार सिरे से मौजूद ही नहीं है, ये जी डॉक्टर यहिया ने आप ही बना लिया। सुने जरा। जी जहर भाई, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे भी यूं ही मैंने ये हवाला सुना तो मुझे समझ
आगे सारी गेम की कि अब ये देखें किस तरह हमारे बड़ों को बदनाम करते हैं। इसी तरह जिस तरह मिर्जा कादियानी ने गवाहियां जब लिखी तो उसने कहा कि बड़े बड़े उलमा ने कहा कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। अब देखें जी प्यारे भाइयों, ये देखें अल्लाह के फजल से जिस तरह ये अब डिनाई कर रहे हैं अखबार अहले हदीस को, उसी तरह ये लोग अब डिनाई कर रहे हैं उन गवाहियों को कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम में के ज़माने में दी गई थी, लिखी गई थी और फिर उन लोगों को वर्गलाया गया। और ये अखबार अहले हदीस का ये जो हवाला है, इसने वो बात भी साबित कर दी कि ये लोग, ये जो गैर अहमदी अहबाब हैं, मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत, सरकारी मुसलमान, अपने आप को सच्चा मुसलमान कहने वाले, ये इनके असल में अखलाक हैं प्यारे भाइयों, के बावजूद इसके के हवाला जात मौजूद हैं जी, ये बिल्कुल सरी तौर पर उसका इनकार कर देते हैं ये लोग, और फिर उसके ऊपर उल्टा जमात अहमदिया मुसलमान के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं। अब मुझे ये बताएं, ये कौन से मुसलमान हैं जो ये इस तरह की हरकतें करते हैं? क्या हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फॉलोअर हैं, मोमन, क्या उनका ये शेवा हो सकता है कि एक बात को जो सच हो, एक तो बगैर सोचे समझे, बगैर उसकी तहकीक किए आगे अवाम को बताने शुरू हो जाए और बड़े मुहक्किक बने? क्या सहाबा के ये तरीका था सहाबा किराम का है जी? और फिर एक बात हुई है और उसको डिनाई कर दिया जाए सिर्फ इसलिए कि अपनी एक झूठी बात को सच्चा साबित बनाने के लिए। ये कौन सा इस्लाम है शमसुद्दीन साहब? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान अब आपके ऊपर, आपकी तहकीक के ऊपर, आपकी टीम के ऊपर खड़ा हो गया है। मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। बहरहाल आगे चलते हैं, जिनकी गप्पे सुने। किस तरह उलमा पे उलमा कैसे कह सकते हैं? ये तो आम मुसलमान भी नहीं कहता। ये देखें जी, उलमा कैसे कह सकते हैं, ये तो आम मुसलमान भी नहीं कहता। तो शमसुद्दीन साहब के नजदीक प्यारे भाइयों, ये इबारात अपने अखबार में छापने वाला बंदा वो आलम भी नहीं हो सकता, आलम छोड़ वो आम मुसलमान भी नहीं हो सकता है जी। तो जनाब शमसुद्दीन साहब, आपने तो मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की मेरा ख्याल इससे ज्यादा बड़ी बेइज्जती नहीं होगी। आप तो कहते हैं कि आप उनकी रूहानी औलाद हैं, है जी। आपकी जो पाइस स्पिरिट साहबा हैं वो अहले हदीस हैं। जरा सोच के बात की आपने करनी थी। अब तो आपने अखबार अहले हदीस वालों को कहीं का नहीं छोड़ा। आपने कहा ना ये इस तरह का लिखने वाला आलिम हो सकता है, ना इस तरह का लिखने वाला कोई आम मुसलमान भी हो सकता है। तो क्या है फिर आपके मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब? है भी सानू दस दो फिर। है मुबारक भाई, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब तो फिर कहीं के भी नहीं रहे शमसुद्दीन साहब के नजदीक। असल में डॉक्टर साहब मसला तो यही है ना कि ये लोग बिल्कुल भी अब तक जितनी आपने इसकी गुफ्तगू सुनाई है, कोई भी जी शाऊर आदमी जो बंदा छोटी सी भी अकल रखता है वो इससे मुकम्मल तौर पर जज कर सकता है कि शमसुद्दीन के तमाम दावे खुद साख्ता और खुद बनाए हुए, और हवा में किसी ने कोई बात पकड़ा दी, उसके ऊपर बुनियाद रख के उसने आगे चलना शुरू कर दिया। हत्ता कि यहां पे ये जो आखिरी बयान इसका सुनाया गया है, इससे साफ जाहिर होता है ना सिर्फ इसने अपने उलमा को पढ़ा है, बल्कि बगैर तहकीक किए उनके मुतल्लक इनडायरेक्टली वो बात मंसूब कर दी जो कि इसको नहीं करनी चाहिए थी, यानी आम मुसलमान से भी नीचे दर्जा दिया है सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को। तो फिर इसका मतलब ये है कि या तो अब उनकी बात को मानते हुए कि ये वाकयात जो मेरे सारे पलंदे के खिलाफ साबित हुई है और जो मैंने जूज आसिफ की जो ताना बाना बुना था उसको तार तार इसने कर दिया है, बिल्कुल उन्हीं बातों की तरह, उसी कैंची की तरह जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने सबूत और दलाइल दिए और तहकीक करके बताया कि हाँ कुरान की बात देखें। कितनी अफसोस की बात है डॉक्टर साहब कि कुरान की बात को साबित करने के लिए
कुरान की शान और मकाम बयान करने के लिए, कुरान को मार्कातुल आरा किताब साबित करने के लिए, कुरान को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात साबित करने के लिए हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को ने उसकी बातों को दलाइल के जरिए, हकायक के जरिए, तारीख के जरिए, वाकयात के जरिए, शहादतों के जरिए साबित किया कि कुरान की बात सच्ची है। कुरान की इज्जत जो है वो तमाम हर किताब से, हर दलील से बड़ी है। और उसकी बात इन्होंने आज हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की उस तहकीक की बात को, उन शहादतें जो उन्होंने दी, उन सबको, और कुरान की जो इज्जत को बढ़ाने के लिए हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने उन वाकयात को सबूत के तौर पर पेश किया, उनको इन्होंने खुद तस्लीम कर लिया। आज ये इनकार करने के बावजूद इनके अपने अकाबरीन ने उन्हीं बातों की तस्दीक कर दी कि ये तहकीक बिल्कुल ठीक है। अब इनके पास कौन सा रास्ता है? या अपनों को भी छोड़ दें, उनको भी झूठा कहें, या फिर हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की उस बात को तस्लीम करें। इनके पास और कोई चारा है ही नहीं। दो ही सूरतें हैं, यहां अपने अकाबरीन को कहें कि यार हमारे अकाबरीन जो बुनियाद डालने वाले हैं इनके फिरका की, वो बिल्कुल झूठे हैं, उनको इस्लाम का बिल्कुल नहीं पता, जिस तरह इन्होंने कहा कि वो आम मुसलमान भी नहीं हो सकता। या तो ये कहते कि वाकयातन वो आम मुसलमान नहीं थे, या फिर ये कहें कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जो बात की वो बिल्कुल सोलह ने दुरुस्त थी, उसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है, और उनको उसको मानने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। दो ही बातें हैं, दो ही रास्ते हैं, जो मर्जी इख्तियार करें। जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब ये है, एक तो मैं इससे पहले कि आगे मज़ीद चलूं, एक भाई ने कहा है कि लिंक दें, उन्होंने तो लिखा है वैसे लिंक दो, शायद इनको पूरी उर्दू इस तरह नहीं आती कि किस तरह कोई बात कहनी होती है, लेकिन लिंक मैंने लगा दिया है। जिस दोस्त ने भी आज की जो गुफ्तगू है हमारे के बारे में बात करनी है, वो बेशक हम इसके बाद पहले हमारी वीडियो जब ख़त्म हो जाएगी तो बेशक आके वो बात कर लें, लेकिन 12 लिंक मैंने खाकसार ने लगा दिया है। कोई दोस्त यहाँ पे कह रहे थे कि लिंक दें। अच्छा, बहरहाल जी चलते हैं। जो शमसुद्दीन साहब ने जो शगुफे छोड़े और जिस तरह से जो अपने सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को इन्होंने बेइज्जत किया है और इनके साथियों ने, उनकी ज़रा सुनते हैं। मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर दिया है ताकि आप, चूँकि ये बात वाज़ेह हो गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह अखबार अल हदीस मौजूद है और हमने बिल्कुल सही 100% दुरुस्त हवाला दिखाया था, तो अब आप सुनेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। बल्कि मैं कहता हूँ मिडल में बोलूँगा नहीं, जहाँ से इन्होंने ये बात शुरू की थी हम ज़रा थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं, ज़रा दोस्त ज़्यादा इंजॉय करेंगे। सुना तो मुझे समझ आ गई सारी गेम की कि अब ये देखें किस तरह हमारे बड़ों को बदनाम करते हैं। इसी तरह जिस तरह मिर्जा कादियानी ने गवाहियां जब लिखी तो उसने कहा कि बड़े बड़े उलमा ने कहा कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। अब देखें किस तरह उलमा पे इल्जाम, उलमा कैसे कह सकते हैं? ये तो आम मुसलमान भी नहीं कहता। बाबर भाई साहब, ये तो आम मुसलमान भी नहीं कहता कि कब्र ईसा अलैहिस्सलाम की है, कुछ आपने उलमा पे इल्जाम लगा दिया। तो चलिए मतलब ये तवज्जो से सुनिएगा, फिर इसके साथ मैं आपको कादियानी कुतुब से भी वो तहरीर दिखाऊंगा। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब, हाँ ये है कि इन्होंने कोई अखबार में अपने कर दिया और चेंजिंग वगैरह वो लिखलादा बात है, मगर जो तहरीर ये अखबार से पढ़ेंगे वो तहरीर मिर्जा कादियानी की किताबों में भी मौजूद है। अच्छा, हाँ मैंने कहा ना, जिसने कादियानी जराइम पढ़े है ना वो उसी वक्त पकड़ लेता है। तो आप क्या समझते हैं कि रजाई भतीजा है ही है? नहीं, रजाई भतीजा अल्हम्दुलिल्लाह रजाई भतीजा है। चलिए जी एडमन साहब लगाइए जरा, हम फिर इनसे इसका पोस्टमार्टम करते हैं इनके झूठ का, मगर तवज्जो से सुनिएगा। आदत देते हुए जो है वो लिखते हैं कि इनकी बहुत सी रसूमात यहूदियों की रसूमात से मुशाबा हैं। मसलन अफगान मनमी और शादी में कोई फर्क नहीं करते, और शादी से पहले अक्सर लड़के और लड़की में बेतकल्लफी रहती है। बसा औकात ऐसा होता है कि शादी से पहले औरतें हामला भी हो जाती हैं। तो वो ये दोनों उनसे भी मिलते हैं उनकी अक्ल। फिर इखलाक एतवार, जैद भाई वाला आ गया जेल में। अच्छा, ये देखें प्यारे भाइयों,
ایک تو انہوں نے یہ جو بات کی کہ جی یہ دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا کہ حوالے کی انہوں نے بات اس حوالے کو ملانے کی کوشش کی، اس حوالے کو، یہ جو اخبار اہل حدیث میں آیا تھا، سوری یہ والا حوالہ، اس حوالے کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر سے ملانے کی کوشش کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ گویا اخبار اہل حدیث تو یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. لیکن آپ دیکھ لیں ہم نے آپ کو اخبار اہل حدیث دکھا دیا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، یہ اہل حدیث اخبار ہم نے یہ دکھا دیا پیارے بھائیوں. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں اس سے پہلے کہ مزید آگے بڑھوں، مبارک بھائی، یہ مجھے سننے میں غلطی لگی ہے یا یہ ہوا ہے کہ انہوں نے یہ جو ثناء اللہ یہ بات جو کی تھی کہ عام مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں نہیں تھی بلکہ شہادتوں کے بارے میں تھی؟ نہیں، انہوں نے جو وہاں پہ تحریر لکھی ہے، جو بات بیان کی گئی ہے اس کے متعلق کی ہے کہ یہ انہوں نے اخبار اہل حدیث کی بات کی ہے، یا مطلب تو یہی ہے نا کہ اخبار اہل حدیث ہے تو ثناء اللہ امرتسری کی ہے نا، تو پھر اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اخبار اہل حدیث کے متعلق بات کہہ رہے ہیں، یہ تو کوئی عام مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا. یعنی ثناء اللہ امرتسری تو بہت دور کی بات ہے، ان کی یہ اخبار ہے، اس عام جو مسلمان ہے وہ بھی یہ بات نہیں کر سکتا، یہ بات کر رہے ہیں. جی ممکن ہے انہوں نے وہ چونکہ ایک ہی ملتے جلتے فکرے 2 دفعہ کہے ہیں تو میں نے دوبارہ پیچھے چلایا. لیکن بہرحال دوست دیکھ لیں، مختصر بات یہ ہے، اگر میرے سے غلطی بھی ہو گئی ہو تو آپ دیکھیں گے آگے بھی یہ بار بار یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں، یہ اشارے دے رہے ہیں، بلکہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی بات کوئی بھی جو ہے اہل حدیث اخبار میں چھپ نہیں سکتی. انہوں نے مرزا صاحب کی مخالفت میں لکھا ہوگا، ہم لوگوں نے وہاں سے اس کو غلط پیش کر دیا ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اہل حدیث اخبار میں یہ بات چھپی اور شمس الدین صاحب کا یہ دعویٰ کہ اس طرح کی بات وہاں پہ نہیں چھپی وہ 100% جھوٹا ثابت ہو رہا ہے. بہرحال جی آگے چلتے ہیں، سنیں کیا فرماتے ہیں. یہ جو کہا تھا نا کہ بعض عورتیں منگنی نکاح سے پہلے ہی اپنے منصوب کے ساتھ پھرتی ہیں اور پھر حاملہ ہو جاتی ہیں، تحریر میں بھی یہی لکھا ہے مرزا قادیانی نے، اور حضرت مریم کا خصوصی نام لیا ہے. کیا کہتا ہے کہ 5واں کرینہ ان کے وہ رسوم ہے جو یہودیوں سے بہت ملتے ہیں. یہی یہ پڑھ رہا تھا ان کا مبلغ جو قادیانی. آپ دیکھیں پیارے بھائیوں، یہ جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر ہے، ٹھیک ہے، ان کا یہ دکھلانے کا دعویٰ مطلب یہ تھا کہ جی گویا ایسی باتیں تو صرف مرزا صاحب لکھتے ہیں، اس طرح کی باتیں کہ یہودیوں میں اس طرح کے رسومات ہیں وہ چونکہ صرف مرزا صاحب لکھتے ہیں اور کبھی ہو ہی نہیں سکتا ثناء اللہ امرتسری صاحب کا اخبار جناب ایسی بات لکھتے. لیکن ہم نے آپ کو دکھلا دیا کہ شمس الدین صاحب کیونکہ کم علم ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل حدیث اخبار میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے، اور اہل حدیث اخبار نے شمس الدین صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو جو ہے وہ الحمدللہ ایک دفعہ پھر جھوٹا ثابت کر دیا ہے. وہ ایک دفعہ پھر میں اس لیے کہہ رہا ہوں، متعدد دفعہ یہ بات ہوئی ہے، وہ چاہے ثناء اللہ امرتسری صاحب کا موبائل والی بات ہو جو بھی، لیکن وہ چونکہ موضوع نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر کوئی بات کروں یا پھر جان بوجھ کے اپنے پروگرام میں ہماری اس بات کو 15 منٹ دیں گے اور دوسری بات کو 20 منٹ 25 منٹ. چلیں جی آگے چلیں. مثلا ان کے بعد اچھا یہ بات بہرحال ہوگی، آگے سنتے ہیں آگے اگلی کیا پارٹ. اچھا جی یہ دیکھیں جی حضرت علامہ شمس الدین صاحب آگے اس پارٹ کو لے کے آئے ہیں. ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ خدا تعالیٰ نے کیسی کیسی شہادتیں جو ہیں وہ ان لوگوں سے دلوائی ہیں جو یہ پراپوگنڈا لے کے آتے ہیں. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے یہاں پہ بتایا کہ جی شمس بھائی آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بھی کہا تھا کہ انہوں نے کسی رسالے کا ذکر کیا، یاد ہے آپ کو؟ جی جی اچھا اسی کے آگے انشاءاللہ ابھی دیکھیں میں وہ سکین لگاتا ہوں، سیرت المہدی کا سکین آپ کے سامنے ابھی آتا ہے اور اس میں آگے موجود ہے جو کہ اخبار اہل حدیث نے یعنی نبو جو ثبوت تھا وہ نہیں چھاپا تھا. لیکن اس وقت آپ ایک منٹ یہاں روکیے گا، منٹ کی غزل میں وہ مضمون چھپا ایک سکین آپ پراپوگنڈا لے کے آتے ہیں. ایک منٹ آپ کے سامنے ایک سکین پیش کرتے ہیں. اچھا یہ
जो है बहरहाल ये मेरे ख्याल थोड़ा सा वो इनके प्रोग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, वो मिडल में हिस्सा आ गया। जो अखलाक व अतवार की शहादत यहूदियों की तरह, ये थोड़ा सा इसको जूम कर दे नंबर 5 को जी, यहूदियों की तरह अफगान भी तदो रंज, खुद गर्ज, सरकश, कुम जहन, जाहिल, सख्त दिल, कजरो वगैरह वगैरह होते हैं। अब ये सारी चीजें जो उनमें यहूद में पाई जाती हैं वो अफगान के अंदर भी वो चीजें पाई जाती हैं। जज्बाती बहुत होते हैं, मिनट मिनट में कत्ल करने पे आ जाते हैं, और यही बाइबल की तालीम है, यही बाइबल के अंदर सिखाया जाता है, कत्ल करना, हर चीज बाइबल के अंदर तकरीबन इसी तरह की बातें लिखी हुई हैं। ये गौर से इसको हमारे सामईन नाजरीन देख लें कि अच्छा जी अच्छा, अब ये प्यारे भाइयों, ये अब ये मसीह इस्लाम का लेके आए हैं कि गोया जी क्योंकि मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने भी इससे मिलती जुलती बात लिखी हुई है, तो शमसुद्दीन साहब के तजर्बे से साबित हुआ कि ऐसी बात तो अहले हदीस में लिखी जा ही नहीं सकती है जी। अहले हदीस ऐसी बात लिख ही नहीं सकता, ये तो मिर्जा साहब ही हैं जो सिर्फ इस तरह की बातें लिखते हैं। सुने जरा क्या कह रहे हैं जी। ये हवाला आ गया जी। अब देखिए इन्होंने ये इल्जाम लगाया कि ये सनाउल्लाह ने अपनी उसमें छापा है। ये देखें, इन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि सनाउल्लाह ने अपने उसमें छापा है। शमसुद्दीन साहब, हमने इल्जाम नहीं लगाया, आपने सनाउल्लाह अमृतसरी के ऊपर इल्जाम लगाया है कि सनाउल्लाह अमृतसरी इस तरह की बात अपनी अखबार में छाप ही नहीं सकते जनाब। ये आपने इल्जाम लगाया है, और उनको जो है जो दर्जा फिर आपने दिया है अपनी बातों में, उसके मुताबिक तो बेचारे उनका दर्जा तो आम मुसलमानों से भी कम हो जाता है। बहरहाल आगे चलते हैं। अब ये हवाला भी इसी पेज का है, किताब नंबर कादियानी जराइम जिल्द 14 सफा 300। अच्छा, इससे पहले प्यारे भैया मैं इनका दिखाऊं, मैं चूंकि मुझे इनका पता है कि ये वो जो है वो इधर से बात उधर की बातें उधर लगाएंगे। बात ये है कि ये लोग बार बार इस तरह की बातें करते हैं कि कब्र मसीह, यानी वो जो यूस आसिफ की हजरत यूस आसिफ अलैहिस्सलाम की जो कब्र है, या कश्मीर में जो कब्र है, ठीक है, उसके हक में बात करने वाला कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ही कब्र है, वो तो खिलाफ कुरान बात है। ठीक है जी। हम जो ये अहले हदीस रसाला जो है, अहले हदीस का अखबार, ये जो हमने आपको दिखाया है, ये लेके आए, तो हम क्यों लेके आए थे? हम अपने इस हक में लेके आए थे, अपनी जो हमारा दावा है उसके हक में कह लें कि जो कश्मीरी लोग और जो अफगानी लोग हैं वो दरअसल बनी इसराइल की नस्ल से हैं, क्योंकि इनकी रस्म और रवाज वगैरह, इनकी आदात व द्वार मिलते जुलते हैं। ये लोग बार बार ये बात कहते हैं कि जो कोई मुसलमान है, हाँ जी, जो कुरान पे यकीन रखता है, वो तो इस तरह की बात, इस बात को फेवर कर ही नहीं सकता कि ये जो कब्र है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की है। ठीक है जी। उस कब्र को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की साबित करने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि वहाँ पे जो कबाइल हैं यहूदियों के, उनका होना ज़रूरी है, तभी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने जो गुमशुदा भेड़े हैं उनकी तरफ गए, इसलिए फिर ये ऐसे हवालों की मुखालफत करते हैं। लेकिन मुखालफत के चक्कर में जो ये बातें करते हैं कि जी मुसलमान ऐसी बात नहीं कर सकता, खिलाफ कुरान ऐसी बात, जो बंदा ऐसी बात करता है वो खिलाफ कुरान जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी बातें आप देख लें, ये अहले हदीस के ऊपर जाके लग रही हैं और इनके सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के ऊपर। ठीक है जी। बहरहाल सुनते हैं ये आगे क्या कहते हैं। ये शो कर रहे थे कि अखबार के अंदर जो है सनाउल्लाह साहब ने ये बातें की हैं और अफगानियों को उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है, जबकि उन्होंने मिर्जा कादियानी की औकात दिखाई होगी। अगर ऐसा है तो फिर मिर्जा की, ये देखें मेरे भाइयों, यानी इन लोगों ने इतनी भी इनको नहीं पता कि भाई हवाला आपके पास नहीं है साहिबान, तो ये क्या होता है, ये कौन सी इल्मियत है जनाब होगी, और तुसी ते हवाला देखे ही नहीं पाई जान अजय जी। आप कह रहे हो होगी, औकात दिखाई होगी, क्या आपकी तहकीक यूं होती है? हमें तो पता है कि आपकी तहकीक, आप कितने बड़े मुहक्किक हैं, हमें तो पता है कि आप कितने पानी में है शमसुद्दीन साहब, और आपकी टीम कितने पानी में है। लेकिन ये जो बातें आपने की, हमारी जो लेक्चर नंबर 5 था उससे घबरा के,
उसने तो आपकी पूरी तहकीक, पहले मकबरा बना था, अब आपकी पूरी तहकीक को नंगा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, आगे चलते हैं। किताबों से वाले मिले हैं हमें, सबूत भी इनके घर से मिल गए। अब ये देखें, इसी में ये देखें जी, सबूत भी इनके घर से मिल गए। ये देखें जी, सबूत भी मुबारक भाई ये देख लें, कहते हैं सबूत भी इनके घर से मिल गए। ये देख लें, सबूत हैं शमसुद्दीन साहब, आपके घर से मिल गए हैं, अहले हदीस से, रिसाले से, है जी। वो बेचारा तो हवा में बातें कर रहा था कि ऐसे नहीं तो ऐसे होगा। हाँ जी, जिनका ईमान, जिनका दीन ऐसे नहीं तो ऐसा तो होएगा, हैं? बिल्कुल, हाँ जी, वो उस बुनियाद पर हो, इन बेचारों पर सिर्फ और सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जा सकता है। ये सिर्फ डॉक्टर साहब जैसा कि इस मौसूफ की अपने मुंह से सच्चाई पूरे मीडिया पर मौजूद है। हैरत होती है कि लोग फिर भी इनके पीछे चलते हैं। इन्होंने ये खुद इकरार किया हुआ है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करता हूं और कोई गरज नहीं है, बल्कि इनकी फोन कॉल्स भी जो आउट हुई हैं, ये पैसे मांग रहे हैं किसी से कि यार वो तो यूज आसफ पे वो सारे नोट खर्च हो गए हैं, अब मैक्स साहब मुझे और कोई नोट भेजो। तो वो उसकी भी फोन कॉल जो आई है कि जी इन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਧੇ ਥੱਲੇ ਲਵਾਤੇ ਨੇ। वो भी फोन कॉल आउट हुई है, सबने सुनी हुई है। ये तो इस बेचारे का हाल है। इल्म कहां से आई है? जब पैसा ही गेम हो सारी, तो फिर वो ताना बाना ही बुना जा सकता है ना, हकीकत तो नहीं बुनी जा सकती, हकीकत पर तो बात नहीं की जा सकती। जी जी, बात ये है मुबारक भाई, आपकी बात जो है वो मुझे ये हैरानगी होती है कि चलें जी उस बंदे की तो मजबूरी है, जिस तरह वो उन्होंने कहा, मिर्जा साहब ने भी कहा कि जी वो कह रहे थे कि जो कादियानियत जो है वो बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है। ठीक है, चले जी इस बंदे की तो मजबूरी है। मुझे ये नहीं समझ आती कि वो जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं, अच्छा उनकी मजबूरी वजह पता है क्या मुबारक भाई? उनमें से अक्सर वो लोग हैं जो कि जो हैं मुर्तद हैं। उनकी मजबूरी ये है कि वो हसद में, और वो समझते हैं कि हम गोया इस तरह जमात को बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे, हालांकि जो नुकसान पहुंचाया जमात को वो देख ले जितना आपने नुकसान पहुंचा दिया है। जी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं बारिक भाई? नहीं ठीक है, आप जारी रखें, मैं फिर इंशाल्लाह। जी ठीक है, मैं उसको वीडियो थोड़ी सी रह गई है दोस्तों, उसको बहरहाल ये बिल्कुल आखिर पे पहुंच गई है वीडियो, 1 मिनट कुछ से सेकंड की रहती है। बहरहाल जी आगे सुने। सातवां करीना इखलाकी हालतें हैं जैसे सरहदी बगानों की पत्नी आगे। ओए होए होए होए, बड़ा मुश्किल लफ्ज आ गया यार। रहते उन शमसुद्दीन देखे ना, ये भी कसूर मुबारक भाई ये मिर्जा साहब का कसूर है। नहीं, अभी ये गलतियां दूसरे की निकालेगा। किन्ने क्या से इन्ना मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल करो है जी। अब वो वॉ के ऊपर शद भी है, हैं? अब वो चलें जी, शमसुद्दीन साहब पढ़ने लगे हैं इसको। जोदरंजी और तलवन मिजाजी और खुद गर्जी और अपाइस में साहब से पूछ लेते तो वो भी चलो नजदीक कुछ ना कुछ बता ही देती है इनको। नहीं वो मुबारक भाई वो कोई नाराज हो जाते हैं, चले छोड़े, वो कहते हैं जी नाम क्यों लिया है, चले वो उनको खुद ही पता है कहाँ से जाके पूछना है, घर की बातों में हमने जरूर इंटरप्ट करना है जी, वो उनको अक्लमंद है। चले हैं या नहीं अंदाजा बहरहाल देख लें। ये दोबारा सुने हैं जी, इनको दूसरों के ऊपर कहते हैं नहीं, तरोड़ मरोड़ कह दिया इन्होंने। मिजाजी और खुद गर्जी और गर्दन कशी और कज मिजाजी और कज रवि और दूसरे जज्बात, नफ्सियात और खूनी ख्यालात और जाहिल, यानी यही चीजें वो पढ़ रहा था इनका मुबल्लग, अखबार के अंदर लिखी हैं। फिर आगे चलते चलते वो कहता है ये तमाम सिफात वही हैं जो तौरात और दूसरे सीफों में इसराइली कौम की लिखी हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये कादियानी कुतुब के हवाले एज ए सबूत, यानी कादियानियों को शर्मिंदा करने के लिए तो सनाउल्लाह साहब दे सकते हैं, क्या वो मिर्जा कादियानी की सच्चाई को साबित करने के लिए ये हवाले दे सकते हैं? ये कैसे मुमकिन है? ये प्यारे भाइयों हैं जी, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया जी शमसुद्दीन साहब ने कि ये हवाले
कहना चाहते हैं ये कैसे मुमकिन है कि अहले हदीस अखबार में ये हवाले आ जाएं, क्योंकि ये हवाले आ गए तो ये खुद प्यारे भाइयों इनका इकरार मौजूद है कि इन हवालों के अहले हदीस में छपने से जमात अहमदिया मुस्लिमा और हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम उनके हक में ये हवाले जाते हैं। हमने ये देख लें शमसुद्दीन साहब, इसको रोक के बेशक पढ़ लीजिएगा, ये बैन ही वही सफ़हात हैं जो हमने अल फजल जो है उसमें के हमने दिखाए थे। ये सफ़ा नंबर 13 है। उसके बाद आप अपने जो है वो अगर आपने एक और सफ़ा आपको दिखा देते हैं कि ऐश करो, आपके पास तो अखबार कहाँ होना है, मैंने कहा भी था मेरे पास है, लेकिन बहरहाल आप लोगों ने चूंकि आवाम के सामने ये गप्पें चलानी थी, है जी। ये देखें प्यारे भाइयों सफ़ा नंबर 14, और इसमें भी बैन ही वही इबारत लिखी गई है जो कि हमने पिछली दफ़ा आपके सामने पेश की थी, और हमने बताया था कि ये जो 8 के बाद जो शहादत नंबर 9 है ये अखबार अहले हदीस ने नहीं लिखी थी, क्योंकि उनके नज़दीक ये उनके जो अकीदा है उसके खिलाफ थे। ये देखें 8 के बाद सीधा 10 पे गए हैं। बाकी ये सारा देख लें वही इबारत है जो कि अखबार अल फजल के लिहाज से हमने आपको दिखलाई थी, ये जो अखबार अल फजल है, ठीक है प्यारे भाइयों। ये देखें वही जो टेबल वहाँ पे छपा हुआ था, ये यहाँ पे अखबार अल फजल ने छापा है। ये देखें काबल पूंछ है जी, इधर देखें, इधर ये जो इन्होंने छापा है, ये देखें काबल पूंछ वगैरह वगैरह। बहरहाल जी अब देखते हैं इसके बाद मेरा ख्याल शमसुद्दीन साहब की वीडियो भी खत्म ही हो गई है, देखिए शायद कोई बात रह गई हो या नहीं है। अच्छा जी, ये मेरा ख्याल चले सुनते हैं इसमें क्या अंदर ये तहरीरें लिख रहा था कि वाकई अफगान कौम ऐसी है, आपको समझ नहीं आई। अगर सनाउल्लाह साहब लिख रहे थे तो वो आपको शर्म दिला रहे थे कि मिर्जा कादियानी ये कुछ कहता है। चलिए बहरहाल जी ले जी प्यारे दोस्तों हैं जी, हमें समझ नहीं आई। शमसुद्दीन साहब कहते हैं जी ये अगर सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने अगर लिखा है तो वो कादियानियों को शर्म दिला रहे थे। ये देखें जी कहाँ पे, अब अगर इनकी बात मानी जाए तो हर फिक्रे हर उसके बाद लिखा होना चाहिए कि लेकिन अपना इनका होना चाहिए। नहीं जी, ये तो कादियानी कहते हैं लेकिन हम ये कहते हैं, उसको इनको डिनाई करना चाहिए, उसके मुतजाद बात लिखनी चाहिए। कहाँ पे है जी वो मुतजाद बातें, है जी। इसलिए ये सारी ये जो कहानियां झूठ शमसुद्दीन साहब और इनके दोस्तों ने प्यारे भाइयों आपके सामने पेश की। डॉक्टर साहब ये बात करके उन्होंने थोड़ा सा अपने लिए सुराख बनाया है कि मैं अगर अपनी सारी बातों में झूठा पढ़ भी जाऊं, जो कि वो पढ़ चुके हैं, हमने वो सबूत दे दिए हैं, तो ये उन्होंने सुराख बनाया है कि मैंने फिसलना कहां से है बाद में। मैंने एक स्ट्रीम जो है वो पूरी करनी किस तरह है कि मेरा मतलब ये था, वो देख लें कि ये जी देखें जी ऐसे था तो ऐसे था। अब इनके पास मैंने पहले भी कहा था कि इन्होंने मजीद अपने आप को उसमें धंस दिया है, अपने जंप कर दिया उसके अंदर। इन्होंने ये कहकर कि ये तो मिर्जा कादियानी अलैहिस्सलाम के हक में ये बातें जाती हैं जी जी। तो फिर ये वो अखबार पढ़े तो उनकी तहरीर अगर इनको समझ आ जाए, इनको इतनी अकल आ जाए कि हाँ ये सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने ये लिखा है, तो फिर वो हक जो इन्होंने कहा है वो फिर तस्लीम करना पड़ेगा इनको। नहीं तो फिर वो जो जाहिद गालीबाज है, जो बदजुबान है, पूरे सोशल मीडिया में मशहूर है कि वो बदजुबान है, वो जो इसको मशवरे देता है कि ये थूक के चाटना, फिर वही अल्फाज जाहिद साहब को हम कहते हैं कि इनको कहें या फिर वो कर लें जो आप दूसरों को कहते हैं। हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये आपका मयार है, आपका वो जो फॉर्म आप जिस स्टेज पर बैठ के बातें करते हैं उसका ये सारा कुछ है। आप ही इसको जो है वो अपने ऊपर डाल लें। जी जी बिल्कुल। अच्छा ये मुबारक भाई बात आपकी ठीक है। इन्होंने कोशिश की कि ये एक जो है चोर दरवाजा रख लें कि शायद उधर छपा हो, और शायद इनको वो शायद वहां पे कोई ऐसी बात लिखी हो जो कोई जमात मुखालिफ बात हो, तो फिर ये चोर दरवाजा इनको मिल जाएगा कि जी मैं तो क्या सी। इसीलिए मैंने ये पूरे जो दो सफ़हात हैं ये दिखा दिए हैं। ये देख लें प्यारे भाइयों, आप भी देख लें,
ان صفحات میں جماعت احمدیہ مسلمہ کا ذکر تک نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, پوری کی پوری جو اخبار ملٹری گزٹ میں جو بات چھپی ہے, یہ مضمون ویسے کوئی میرا خیال 3.5 صفحات پہ چھپا ہے جو اخبار اہل حدیث کا, لیکن کوئی اب دیکھیں یہ اگر ان کی باتیں درست ہوتی تو یہاں پر بھی وہ باتیں ڈسکس کی جاتی, لیکن نہیں کی گئی. اور اس طرح سے وہ جو چور دروازہ شمس الدین صاحب رکھنا چاہتے تھے وہ بھی ان کو نہیں ملا. اور جس طرح کے مبارک بھائی نے کہا ہے شمس الدین صاحب اور ان کی ٹیم کو اب 2 ہی راستے ہیں, یا تو جو اخبار اہل حدیث میں چھاپا گیا ہے جو جماعت احمدیہ مسلمہ بھی وہی جو وہ اپنی کتابوں میں بیان کرتی رہی ہے جو باتیں ہیں جی, اخبار اہل حدیث اور جماعت احمدیہ مسلمہ وہ دونوں ایک پیج پہ اب آگے ہیں. ٹھیک ہے, شمس الدین صاحب آپ اور آپ کی اہل حدیث پائس اسپرٹ صاحبہ اور آپ کے دوسرے, مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ کون کون سے فرقے کے لوگ ہیں, وہ اب چلے گئے ہیں دوسرے پیج پہ. اب یہ ڈیسائیڈ کریں, آپ کہتے ہیں کہ یہ خلاف قرآن باتیں ہیں اس طرح کی باتیں کرنا, اب یہ ڈیسائیڈ کریں کہ خلاف قرآن آپ ہیں شمس الدین صاحب, پائس اسپرٹ صاحبہ ہیں, آپ کی ٹیم ہے, یا اخبار اہل حدیث اور مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب ہیں. یہ ڈیسائیڈ کر کے, یہ سوال ہے ہماری طرف سے. 2 گروپ ہیں, ٹھیک ہے جی, اخبار اہل حدیث اور مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب. ٹھیک ہے, دوسرا گروپ ہے جو کہ شمس الدین اور شمس الدین صاحب کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ اور واہ واہ بلے بلے کہنے والے لوگ, جو کہ اپنے شمس الدین صاحب کو یہ اپنے پروگرام میں یہ بار بار اس طرح کی باتیں کرتے رہے کہ جی گویا اس طرح کا حوالہ تو اہل اخبار حدیث میں کوئی ہے ہی نہیں, یہ جی ان لوگوں نے خود ہی ایجاد کر لیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں گروپوں میں سے کون خلاف قرآن ہے اور ان دونوں گروپوں میں سے کون غلط ہے, یہ اب اگلے پروگرام میں بتا دیجیے گا, بڑی مہربانی ہے. اچھا, اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک دوست آئے ہوئے ہیں, ان کو ہم کال پہ لیں. یہ دیکھیں پیارے بھائیو, ہم نے جو باقی جو باتیں تھیں اپنے یہ جو چیلنج ہے اس کے اوپر تو ان کی باتیں اب جو ہے وہ باتیں ختم ہو گئی نا. شمس الدین صاحب مجال ہے اس چیلنج کے اوپر کوئی بات کریں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ میں یہی کہنے لگا تھا کہ وہ چیلنج جو ہے نا وہ ذرا دکھا دیں, اس کو دیر ہو گئی, ان کو یاد آ جائے. نہیں بالکل, میں باقی آپ کی بات ٹھیک ہے. شمس الدین صاحب کتنے بھولی نہ جان, میں اس کو شیئر کر کے نا, مجھے ابھی یاد آیا, میں نے پاس وہ کھلا پڑا ہے, میں شمس الدین صاحب کو ان کی چھیڑ جو ہے وہ دکھا ہی دوں جی. مطلب وہ زیادہ دیر, یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے مبارک بھائی جی, تھوڑا سا اگر زوم ہو سکتا تو کر دیں. جی ضرور, یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی, یہ شمس الدین صاحب بالکل ٹھیک ہے, یہ شمس الدین صاحب ہیں. اچھا, ایک اور بات بھی پیارے بھائیو میں بیان کر دوں, یہ اس قدر جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں, بغیر ثبوت کے بغیر کسی بات کے بار بار اپنے پروگراموں میں یہ میر لطیف صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ جی یہ میر سلیم صاحب کے والد محترم ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بھائی جان میر لطیف صاحب جو ہیں وہ میر سلیم صاحب کے والد محترم نہیں ہیں. کہتے ہیں جی یہ میر سلیم صاحب اس لیے نا میرے سے بدلہ لے رہا ہے کہ میں نے میر لطیف صاحب کو یہ کہا تھا. وہ ان کے والد نہیں ہیں, ان کے چچا ہیں, چچا ہیں یا تایا ہیں, لیکن بہرحال اسی طرح کا رشتہ ہے. اچھا جی, یہ پیارے بھائیو وہ تو چھوٹی سی بات تھی. یہ شمس الدین صاحب, یہ جناب چیلنج کی شک نمبر 1 جس کے بارے میں آپ نے حوالہ ابھی تک نہیں دیا. بے شک ہماری سٹریم میں آپ نے نہ دینا تھا نہ آپ نے دیا. اپنی سٹریم میں کون آپ کو منع کر رہا ہے جناب؟ عوام کے سامنے حوالہ دیں اور ہمیں جھوٹا ثابت کریں. ٹھیک ہے, آپ نے حوالہ کیا دینا ہے یہ بھی بتا دوں. آپ نے حوالہ یہ دینا ہے کہ قرآن کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کسی کتاب میں کسی بھی جگہ جماعت کے چلیں جی لٹریچر میں یہ لکھا ہو کہ قرآن اور حدیث, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یوز آصف جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. یعنی قرآن اور حدیث کی قرآن کی فلاں آیت اور فلاں حدیث کے اندر یہ معین الفاظ موجود ہیں کہ
کہ جی یوز یا ملتے جلتے کہ یوز آصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور یہ جو نمبر 2 ہے، یہ اس کا بھی ہم نے کہا تھا کہ گرچہ آپ نے اپنے زوم میں حوالہ دیا، جو ہم نے بتا دیا تھا آپ کو کہ وہ حوالہ فٹ نہیں بیٹھتا، کیونکہ اس حوالے کے اندر بھی وہ باتیں نہیں ہیں. اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرگز یہ نہیں لکھا کہ قرآن اور حدیث میں اس طرح کے الفاظ موجود ہیں کہ جی گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی قبر سری نگر اور کشمیر میں ہے. مسیح السلام نے تو یہ بات وہاں پہ نہیں لکھی اس حوالے میں بھی. تو یہ حوالہ آپ نے دینا ہے. اور تیسرا یہ حوالہ آپ نے دینا ہے اپنے پروگرام میں دے دو. ہمارے پاس تو آپ آنے سے رہے، آپ کو پتہ ہے کہ ادھر آپ کی جو ہے وہ کام ہو چکا ہے، مقبرہ بن چکا ہے الحمدللہ. تو اب آپ یہ تیسرا والا یہ دینا ہے آپ نے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یا جماعت کے لٹریچر سے آپ نے یہ دکھانا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہو کہ قرآن اور حدیث، فلاں قرآن کی آیت یا فلاں حدیث جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی والد تھے جو بادشاہ تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ تو ہوگی چیلنج کی بات، وہ چیلنج جو کہ آپ جس سے دوڑ چکے ہیں، جو کہ اب ہوں تہاڈی چھیڑ بن گیا جی. اچھا پیارے بھائیو، یہ میں ایک بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. یہ ہم نے پچھلی دفعہ کتاب دکھائی اور یہ ان لوگوں نے اپنی، اور اب کیوں دکھائی، وہی جو بات اہل حدیث میں تھی وہی ان کتاب والوں نے بھی لکھی. اور یہ بھی غیر احمدی ہیں کوئی جی، روشن خان، اور یہ ہم نے کتاب دکھائی، اس کے صفحات جو ہیں وہ ہم نے دکھائے تھے. ان لوگوں نے اپنی سٹریم میں اس کتاب کو بھی بالکل ٹچ نہیں کیا جی، جو کہ ثابت کرتی ہے کہ ان کو بھی پتا تھا کہ حوالے جو ہیں وہ ہمیں مروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جس طرح خاکسار نے پہلے عرض کیا تھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس خدا کے فضل سے جب ہم اس کا نام لیتے ہیں تو زاہد صاحب کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں کیا کہ اللہ کے فضل سے. زاہد صاحب جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے جھوٹ عوام کے سامنے جو ہیں وہ یوں کھل رہے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام اور یہ عاجز غلام سچے ثابت ہو رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ کہیں کہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ہم تو کہیں گے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے. یہ پیارے بھائیوں، میں بیان کر رہا تھا کہ ہم نے اصول کافی کا یہ حوالہ پیش کیا جس کے مطابق کشمیر میں، یعنی انہوں نے یہ بیان کیا، یہ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے اگلے کسی پروگرام میں، کہ تورات اور انجیل اور زبور اور صحف ابراہیم کا مطالعہ کرتا تھا. وہ کہتے ہیں یہ جو بزرگ ہیں جن کے یہ اصول کافی میں جن سے کی طرف یہ بات لکھی گئی ہے، ان لوگوں نے اس حوالے کو بھی بالکل ٹچ نہیں کیا. تو کیا ہوا، اب میں آپ کو مختصراً بتا کے پھر سوالوں کی طرف وہ جاتے ہیں جو دوست آئے ہوئے ہیں. ہمارے حوالہ جات، ہماری ویڈیوز کو وہ حصہ جس پہ یہ جھوٹے ثابت ہوتے تھے، انہوں نے وہاں سے جلدی سے گزر گئے. اخبار اہل حدیث کے بارے میں انہوں نے جھوٹے طور پہ دعویٰ کر دیا کہ یہ جو جناب اخبار اہل حدیث ہے ہی نہیں، انہوں نے گویا ڈاکٹر یحییٰ نے اور ان کی ٹیم نے خود ہی بنا لیا ہے. آج الحمدللہ یہ اس میں جھوٹے ثابت ہو گئے. اصول کافی کی اس حوالے کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا. روشن خان صاحب کا جو حوالہ ہم نے دیا تھا اس کو ٹچ ہی نہیں کیا. تو پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ حوالہ تو آپ ہی دیں گے، ہم ہی دیں گے. شمس الدین صاحب، او خدا دا خوف کرو جی. آپ اس قدر اب الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس جو قبر یوز آصف والی تحقیق ہے اس میں آپ پکڑے جا چکے ہیں، چیلنج میں پکڑے گئے جی، ویڈیوز میں پکڑے گئے، حوالہ جات میں پکڑے گئے جی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی حالت پہ رحم کرے. آپ کی وہ جو ہم نے بات کہتے تھے نا بڑی ہی عزت انکساری کے ساتھ کہ جب وہ ہوگا تو پھر دنیا دیکھے گی کہ وہ ہو گیا ہے. شمس الدین صاحب، اللہ کے فضل سے وہ اب ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. باقی اب اگر آپ لوگوں نے جھوٹ بولنے ہیں، آپ لوگوں نے اسی طرح کی سٹوریاں بنانی ہیں، تو پھر ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہم انشاءاللہ آپ کے جھوٹ عوام کو دکھاتے رہیں.